पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री गोविंदराज जी महोदय श्री। मुझे वॉइस थोड़ी कम आ रही है शास्त्री जी आपकी। अभी बराबर आ रही है? हाँ जी शास्त्री जी, बिल्कुल। उनको बंद करो। पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री गोविंदराय जी महोदय श्री मुंबई मोटू मंदिर एवं वापी में विराजमान आजना अपना सत्रना अध्यक्ष स्थाने एवं विशेष वचनामृत माटे आंतरराष्ट्रीय पुष्टिमार्गीय वैष्णव परिषद द्वारा विनंती करवामां आवी एवं चिरायुष्मान आदित्य અને મેં પણ આપશ્રીને વિનંતી કરી કે આવી રીતનું એક સત્ર ચાલી રહ્યું છે તો કૃપા કરી અને આપશ્રી પધારો અને અમારી એવી વિનંતી છે, મનના ભાવ છે, સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં સેવા પ્રકારને માટે જે પણ કંઈ શ્રી આચાર્ય ચરણના વચન છે એની પર આપણને કંઈક અર્થઘટન આપશ્રી દ્વારા જાણવા મળે એવી વિનંતી આપશ્રીને કરી છે। ખાસ તો મુંબઈના વૈષ્ણવો હોય કે દેશ વિદેશના વૈષ્ણવો હોય, મોટા મંદિરની વિદ્વત પરંપરાથી કોઈ અજાણ નથી। આખી એક પરંપરા છે। ઘણા જ વિદ્વાન આચાર્યો મોટા મંદિર દ્વારા આપણે પરિચયમાં આવ્યા અને પુષ્ટિ સૃષ્ટિને ખૂબ લાભાન્વિત કરી છે। આવી એક ઉદાત્ત પરંપરા, સેવાનો ક્રમ પણ એ રીતનો અને વૈદુષ્ય પણ એ રીતનો, આ એક સુભગ સમન્વય છે। લગભગ 7-8 મહિના પહેલા મુંબઈના પ્રેમપુરી આશ્રમમાં શ્રી ધીરેનભાઈ અને નીતાબેન મહેતા દ્વારા શ્રીમદ ભાગવતજીની સપ્તાહનું આયોજન થયું હતું। ઠાકોરજીની કૃપાથી 7 દિવસને માટે મારે વાણી પવિત્ર કરવાની હતી અને મનોરથી પરિવારે આપશ્રીને વિનંતી કરી કે આપશ્રી પધારો। આપશ્રી વાપી બિરાજતા હતા એ છતાં પણ સ્પેશિયલી મુંબઈ પધાર્યા। સામાન્ય રીતે મારો અનુભવ એવો છે કે શ્રી વલ્લભકુલના બાળકો પધારે, અડધો કલાક પોણો કલાકને માટે પધારે, કથા આરંભ થયો અને આપ લગભગ 15-20 મિનિટમાં પધાર્યા એટલે મેં વિનંતી કરી કે પ્રભુ કેટલો સમય લઈને આપશ્રી પધાર્યા છો, એટલે આપશ્રી આજ્ઞા કરી કે શાસ્ત્રીજી આજે સમય લઈને આવ્યો છું ને કેવળ શ્રવણ કરવાને માટે જ આવ્યો છું। મને થોડું આશ્ચર્ય પણ થયું અને આનંદ વધારે થયો, બે વસ્તુ થઈ। અને પછી કૃષ્ણાવતારનો ક્રમ હતો, રામાવતાર થયો, પછી આપશ્રીને વિનંતી કરી અને પહેલી વખત મેં આપશ્રીને શ્રવણ કર્યા। સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી તો જાણું, પણ વચનામૃતનો લાભ જે મેં અનુભવ્યો તો મને એટલું સમજાયું શાસ્ત્રનો પક્ષ, આ પહેલી વાત। બીજી વાત સ્પષ્ટ વક્તૃત્વ અને ત્રીજી વાત એને મોડર્ન અભિગમ સાથે પણ આપશ્રી રજૂઆત કરી શકે, આ ત્રણ વિશેષતા મને દેખાઈ અને એ પણ અસ્ખલિત વાણીનો પ્રવાહ, કોઈ ગ્રંથ પાસે બિરાજમાન નહીં, કંઈ જ નહીં, એ છતાં પણ શાસ્ત્રના પ્રમાણોની સાથે જે આપશ્રી વચનામૃત કર્યા હતા અને એટલા જ માટે આ મનમાં એવો મનોરથ થયો કે આપશ્રી આજના આ ષોડશ ગ્રંથનું જે આયોજન પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ પરિષદ દ્વારા થયું છે એમાં આપશ્રી પધારે અને દરેકને લાભ મળી શકે, આ જ એક અમારી વિનમ્ર વિનંતી આપશ્રીના યુગલશ્રી ચરણોમાં છે અને આપશ્રી પધાર્યા અમારા સર્વનું અહોભાગ્ય છે। તો આંતરરાષ્ટ્રીય પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ પરિષદ વતી અને અમારી સર્વ વતી પણ આપશ્રીનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને વચનામૃત દ્વારા અમને સર્વને કૃતાર્થ કરો એવી વિનમ્ર વિનંતી છે। અસ્તુ। પહેલા થોડો ઔપચારિક ક્રમ હું કરી લઉં મારા તરફથી કે આંતરરાષ્ટ્રીય પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ પરિષદના આ પુનીત પોર્ટલથી અને સોશિયલ મીડિયાના આ એક
હું જેમ કહું છું કે અંતરજાલીય ઝૂમ અંતર્ગત સત્સંગ સત્રના આ બધા પ્રકલ્પોમાં સૌથી પહેલી વાર મને પરિષદ દ્વારા, અને પરિષદને હું એકવાર પછી લઈશ કે હા ભાઈ એમનું તો આગ્રહ હતું જ, પરંતુ જેમને મારું નામ સજેસ્ટ કર્યું એવા હું કૃષ્ણદત્તજી શાસ્ત્રીજી તથા એમના ચિરંજીવ શ્રી આદિત્યભાઈ શાસ્ત્રીજી, આ બંને વિદ્વાન મારા સંપ્રદાયના, મારા એટલે અમારા બડા મંદિર મોટા મંદિર ઘરના એવા પ્રિય બંને શાસ્ત્રીજી મહાનુભાવોનું હું નમસ્કાર પૂર્વક અભિવાદન અને અભિનંદન કરું છું. સાથે મને આદિત્યભાઈએ બહુ સુંદર બતાવ્યું કે આમાં પરમ ભગવદી શ્રી પ્રદીપભાઈ, શ્રી કેતનભાઈ અને શ્રી કમલેશભાઈ, આમ એ ત્રણ મહાનુભાવોનો પણ વિશેષ આગ્રહ છે કે આજે આ સત્સંગમાં હું શ્રીમદ આચાર્ય ચરણની અને આપના સમસ્ત પરવર્તી આચાર્યોનો જે મત છે એ હું સબના આપ સૌના સમક્ષ રાખું. પરંતુ મારી એક સહજ સમસ્યા છે કે આ બધા વૈષ્ણવને થોડુંક પરિશ્રમ પડશે, પણ હું એકચ્યુઅલી મેં વક્તા હિન્દીનો છું, હું ગુજરાતી આટલી સારી નથી બોલતો. જો મારા બહુજી ધોરાજીના છે, પણ તોય હું આટલા 15 વર્ષોમાં સારી ગુજરાતી બોલતા ન શીખી શક્યો. તો બહુ એમાં ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક્સ થાય છે, ને પછી એ ટ્રાન્સલેશનમાં મેં જે વાંચ્યું હોય ભણ્યું હોય એ હું ન પરોસી શક્યું તો મને બહુ એમાં ક્લેશ થાય. તો એટલે હું બધાને આગ્રહ કરીશ કે પ્લીઝ મને અલાઉ કરો કે હું હિન્દીમાં એટલે રાષ્ટ્રભાષામાં, આપ લોકોની માતૃભાષામાં નહીં અપિતુ આપણી રાષ્ટ્રભાષામાં હું મારા સબ્જેક્ટને અહીંયા બધાના સમયે પ્રસ્તુત કરું છું. બીજું હું મંગલાચરણ કરું એની પહેલા હું એક વસ્તુ કહીશ કે આપણા આ સંપ્રદાયમાં હજી એટલા વિદ્વાન આચાર્ય બાળકો, શાસ્ત્રી વર્ગ બધા બિરાજે છે, અને વડીલ વૈષ્ણવો આટલા સુંદર જાણકાર વૈષ્ણવો બિરાજે છે કે હું સંપ્રદાયમાં હજી પોતાને કોઈ ઓથોરિટી નથી માનતો કે હું કોઈ એક ઓથોરિટીના જેમ એક ઓથેન્ટિક, પરંતુ હું આટલું કહીશ કે સત્યમ વદ ધર્મમ ચરમ હું માનું છું. તો જે કહીશ એ સત્ય કહીશ, અને જે સત્યનું સ્વરૂપ એકમ સદ વિપ્રાહ બહુધા વદંતીથી હું સમજ્યો છું એ હું મારા તરફથી અહીંયા પ્રસ્તુત કરીશ. અને થોડી એક આ વસ્તુને પ્રપંચમાં નહીં લેતા, પરંતુ શાસ્ત્ર દૃષ્ટિયા પણ આપણા ત્યાં આપણે જોઈ ચૂક્યા છે કે પહેલા એક એક ગ્રંથ ઉપર ઘણી ટીકાઓ થઈ છે. જેમ આજે આપણે જે સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથમાં ચર્ચામાં અને સત્સંગમાં પ્રવૃત્ત થઈ રહ્યા છે, આ ગ્રંથના ઉપર પણ લેખ મળાવીને 9 પ્રાચીન ટીકાઓ છે. 9. There are 9 tikas. So we have different school of thoughts, and in our Shuddhadvaita Brahmavad, in our Pushti Marg, તો હું આટલું કહીશ કે હું જે સ્કૂલ ઓફ થોટને બિલોંગ કરું છું એ પુષ્ટિ સિદ્ધાંત સંરક્ષણ શિરોમણી પ્રવર્તમાન હાલના સમયમાં વિરાજમાન શ્રી હરિરાયજી મહારાજ શ્રી જામનગર, એમને જે સિદ્ધાંત મુક્તાવલીના અર્થો કર્યા છે, હું એ સ્કૂલ ઓફ થોટને હમણાં હું સરાહું છું, માનું છું, ને એના અનુસંધાને હું મારો જીવન જીવું છું. તો હું જે પર્ટિક્યુલર ફિલોસોફીમાં જે આઈડિયોલોજીને હું જીવતો હું લોકોને એ જ પ્રોફેસ અને પ્રીચ કરી શકું, ટીચ કરી શકું. તો મને આટલી સ્વતંત્રતા આપ પ્લીઝ આપજો કે સંપ્રદાયમાં હમણાં 2 સ્કૂલ ઓફ થોટ, 90ના એરા એટલે 90નો જે ડિકેડ આવ્યો, દશક આવ્યો, એમાં 2 સ્કૂલ ઓફ થોટ આપણા સમક્ષ આવ્યા. એક ગોસ્વામી શ્રી શ્યામ મનોહરજી મહારાજ કિશનગઢ પાર્લા, એમના તરફથી પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું હતું, અને સાથે એમના સામે હરિરાયજી મહારાજે જે એમને સંપ્રદાયને ડિફેન્ડ કર્યા, એમાં એમનું પણ એક પક્ષ આવ્યો હતો. ને એ સમયમાં પણ આ સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથ જે બહુ આમ કોન્ટ્રોવર્શિયલ ગ્રંથ હતો, એમાં પણ એટલું જ પક્ષ રાખવામાં બંને આચાર્ય મહાનુભાવો તરફથી આવ્યું હતું કે પોતાનું પક્ષ રજૂ કરો કે તમારું શું પક્ષ છે તમે બોલો. એમાં કોઈ પ્રકારનું ખંડન મંડન નહીં, કોઈ જય પરાજય નહીં, કોઈ હાનિ લાભ નહીં, પરંતુ એક વિચાર દૃષ્ટિની સ્પષ્ટતા. તો સ્પષ્ટિકોણ અને દૃષ્ટિકોણ આ બંને વસ્તુ સમજો કે આપણે અહીંયા આજે ડિસ્કસ કરવાના છીએ. તો હું વિશેષ કરીને આટલું જ કહીશ કે આ બધા મારા જે કંઈ પણ અહીંયા વચનામૃત કે સત્સંગ જે આપ સમજતા હો એ થાય. વચનામૃત જ હું કહીશ, કેમ કે આમાં જે વચનો ઉદ્ધૃત થવાના છે તો મારા પૂર્વાચાર્યોના જ થવાના છે. તો હું આટલું જ આજ્ઞા લઈશ બધાથી કે આમાં મારા મૌલિક વિચારો હું ક્યાંય જોડવાનો પ્રયત્ન નહીં કરું, પરંતુ જે વિચારો મને સમજમાં આવ્યા છે આચાર્યોના, મારા વડીલ આચાર્યોના, એ હું આપ બધાના સામે અહીંયા હું પ્રકટ કરીશ. આ બધાને આજ્ઞા લઉં છું મંગલાચરણની ને ગ્રંથમાં
प्रवेश करवानी। श्री कृष्णाय नमः। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यते समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। आचार्य वाचः प्रणमामि भाष्य सुबोधिनी स्वा इतराश्रियास्ता मत्स्वान्तमागत्य कृपाप्लुतास्तां मदीय वाचां रचयन्तु भूषाम्। नमः श्री वल्लभाचार्य चरणाब्ज नखेन्दवे कली कलमश घातिन्यै तद्वाण्यै च नमो नमः। नमो वाक्पतये वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्यान्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु। श्री गुरुभ्यो नमः। आदरणीय शास्त्री जी तथा समस्त प्रिय वाल्लभीय वैष्णवजन, आप सभी का मैं सिद्धांत मुक्तावली इस सत्संग में स्वागत करता हूं। हम सब इसमें दो शब्दों को समझते हैं, जानते ही हैं, एक है सिद्धांत और दूसरा है मुक्तावली अर्थात मोतियों की माला। तो आज मोतियों को जब चुनना हो, मोतियों का जब चयन करना हो तो बहुत नीचे जाना पड़ता है जल में, ऊपर तैरते मोती नहीं मिलते। मोतियों को अपने को चुनने के लिए उस सीप को भी बहुत सावधानी से खोलना पड़ता है जिसमें वो मोती बन के विराज रहा होता है। और यहाँ तो आचार्य चरण ने उतनी मेहनत स्वयं आपने ही कर ली है कि आप ही इन सिद्धांत रूपी मोतियों के तल तक आप पहुंचे, आपने ही मोतियों का चुनाव किया, आप ही ने एक बहुत सुंदर माला बनाई और अपन सब वैष्णवों को कंठी के रूप में ये सिद्धांत की माला पहराई है। तो आचार्य चरण तो हमको सर्वदा से अलंकृत आप करते ही आए हैं, आप प्राकृता खिला कल्प भूषित आप हैं। तो आपने अपने को जिस प्रकार से आप स्वयं श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति हैं, वैसे ही कभी अपने को उन्होंने नवरत्न दिए, कभी उन्होंने अपने को सिद्धांत मुक्तावली दी। तो आचार्य चरण ने अपन सबों का अलंकार बौद्धिक स्तर पे, शैक्षणिक स्तर पे और एक वैचारिक अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्ण बुद्धि विधीयताम के पक्ष को रख के, और जैसा निबंध में आप आज्ञा करते हैं कि कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंति ही ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः। तो शुद्धाद्वैत ब्रह्मवादियों को, सात्विक भगवत भक्तों को, सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्त्यावधिकारण भवांत संभवा येषाम तेषाम अर्थ निरुक्त। क्या कॉन्फिडेंस है अपने आचार्य को अपने पे कि अपना अंतिम जन्म है, इसके बाद या तो पुनश्च सेवार्थ हम आएंगे भूमि पे और या हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो भवांत संभवा येषाम तेषाम अर्थे निरूपिता, जिनका ये अंतिम जन्म है, जिनको वापिस 84 लाख योनि के इस संसार चक्र में परिभ्रमण जिस जीवात्माओं को नहीं करना है, ये शास्त्र ये ग्रंथ तो आचार्य चरण ने उनके लिए प्रकट किया। उसमें भी हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ प्राचीन आचार्यों ने महाप्रभु जी के भी भाष्यादि ग्रंथों को आदि भौतिक, उसके भाष्यादि और वाद ग्रंथ जो पत्रावलंबन आदि हैं उनको आदि भौतिक ग्रंथ, फिर निबंध त्रयी को आध्यात्मिक ग्रंथ, श्री सुबोधिनी जी को और सूक्ष्म टीका पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम आदि को आदि दैविक ग्रंथ, और इसी प्रकार से हमारे इन षोडश ग्रंथों को श्रीमद आचार्य चरणों ने निर्गुण ग्रंथ बताया है। और अपन जानते ही हैं कि प्रायः कितने ही ग्रंथ इसमें ऐसे हैं कि जैसे अंतःकरण प्रबोध आदि कुछ ग्रंथों को छोड़ दो, यमुनाष्टक स्तवन ग्रंथों को, स्तोत्र ग्रंथों को छोड़ दो, तो अधिकांश सभी ग्रंथ महाप्रभु जी ने अपने निर्गुण 84 भक्तों के लिए आपने प्रकट किए। तो महाप्रभु जी ने ये निर्गुण भक्ति का उपदेश जिन ग्रंथों में किया है वो यमुना बाल मुक्ताश्च पुष्टि सिद्धांत रत्न मम विवेक कृष्णा चतु भक्ति जप संज्ञानी सेवनाथ, अर्थात ये यमुनाष्टक से लेकर और सेवा फल पर्यंत ये जितने भी ग्रंथ आपने प्रकट किए हैं इनमें अस्मत् प्रतिपादितंतु भक्ति नैर्गुण्य, जो श्री महाप्रभु जी ने शुद्धाद्वैत पुष्टि भक्ति में प्रेम लक्षणायुत निर्गुण भक्ति का आपने स्थापन किया, जिसके आप भक्ति मार्गी आचार्य हुए। और आचार्य चरण का तो आप देखो कितना क्लियर विजन है। महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा करते हैं भक्ति मार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः। आज भक्ति मार्ग और जितने भी हैं वो तो ज्ञान कर्म समुच्चय ही हैं, उनमें तो ज्ञान का भी स्पर्श है और कर्म का भी स्पर्श है, और कुछ भक्ति मार्ग में तो योग का भी अभिनिवेश है, जैसा कपिल देव जी के प्रकरण में भी हम देख सकते हैं। लेकिन शुद्ध पुष्टि भक्ति में, निर्गुण पुष्टि भक्ति में प्रेम लक्षणा भक्ति का यदि किसी आचार्य ने विशेष रूप से स्थापन किया है तो वो स्वयं हम देख सकते हैं कि हमारे इन षोडश ग्रंथों में जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण ने किया है। तो ये रही बात हमारे षोडश ग्रंथों की। दूसरा,
आज यहाँ जो भी वैष्णव नए हैं, जो मुझे पहली बार श्रवण कर रहे हैं, मैं उनको हमेशा ये बात मेरी तरफ से बताना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ रहा था, पढ़ रहा हूँ आज भी, लेकिन जब मैं पढ़ाई मैंने प्रारंभ की तो मेरे पढ़ाई के प्रारंभ में मुझे ऐसा इन षोडश ग्रंथों को देख के लगता था कि ये एक इंडिपेंडेंट केस फाइल्स हैं। ये किसी के कुछ प्रॉब्लम्स हुई, वो प्रॉब्लम लेके श्री महाप्रभु जी के पास वो गए, महाप्रभु जी ने उसके जो निदान उनको दिए या उनको उनकी समस्याओं का जो निराकरण आपने भक्ति मार्गीय स्तर पे शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के फिलॉसफी आइडियोलॉजी के हिसाब से आपने जो उनको स्वतंत्र अपने मत प्रदान किए, इति में मत, आप देखोगे बहुत जगहों पे श्रीमद आचार्य चरण उसको शास्त्र से प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, अपितु हर ग्रंथ में ये बताना चाहते हैं मेरा ये मंतव्य है। तो आचार्य चरण भी अपना जहां पे मत रख के एक जजमेंट जैसी आप जो दे रहे हैं एक इंडिविजुअल केस फाइल्स को, ये हमारे अलग अलग वैष्णव के केस हैं। कोई राणा व्यास का केस है, कोई बुला मिश्र का केस है, कोई पुरुषोत्तम जोशी सांचोरा का केस है, कोई राजो दुबे माधव दुबे का केस है, कोई नरहरि सन्यासी का केस है, कोई नारायण दास कायस्थ का केस है। आज हम जिस केस फाइल को डिस्कस कर रहे हैं वो अच्युत दास सोनोडिया का केस है। अच्युत दास जी के आज प्रसंग पे हम हैं कि ये जो ग्रंथ है सिद्धांत मुक्तावली, इसका जो प्रागट्य है ये एक्चुअली में पोस्ट मानसी दान इसका प्रागट्य है। अच्युतदास सनोडिया जी को आचार्य चरण क्या चाह रहे थे कि भाई वो तो श्री गोवर्धन धर की सेवा में नहाएं और फिर आनंद से श्री गोवर्धन धर की सेवा करें, श्री जी की सेवा करें, लेकिन उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने मांगा कि नहीं, आप तो सर्वसमर्थ हो, आप कृपा करके अपने सामर्थ्य बल से मुझको आप मानसी सिद्ध कराओ। और जब मानसी सिद्ध कराने के लिए आपने अपना चरणोदक दिया, उनको मानसी सिद्ध कराई, और जब वो मानसी सेवा में तत्पर हुए तब आचार्य चरण को प्रश्न हुआ कि भाई इस प्रकार से यदि हम हमारे प्रमेय बल से, हमारे अगर स्व सामर्थ्य से किसी को यदि मानसी दे देंगे तो फिर कौन तनु वित्तजा करेगा और कौन तनुजा वित्तजा करेगा? तो फिर हर व्यक्ति सेवा में यही कहेगा अपने गुरु से कि भाई आप भी हमको योग मार्गों की तरह और अन्यान्य सांख्य योग आदि मार्गों की तरह, ज्ञान मार्ग की तरह शक्तिपात कर दो और आपके शक्तिपात मात्र से हम सिद्ध हो जाएं। पर अपने यहाँ ऐसा तो है नहीं। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि आचार्य चरण ने सिद्धांत मुक्तावली में अंततो गत्वा इसको सिद्ध किया है कि अनुग्रहो पुष्टि मार्गे नियामक, अनुग्रहो पुष्टि मार्गे नियामक स्थिति नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुगुं स्वाम। ये श्रुति को यदि कहीं सिद्ध करके आचार्य चरण ने सार्थक की हो, सिद्ध करके सार्थक की हो, तो वो हम अच्युतदास सोनोडिया जी के केस में देख सकते हैं इंडिपेंडेंटली कि आपने वहां सबसे पहले उनको मानसी की सिद्धि कराई और उसके बाद आपने ये सिद्धांत मुक्तावली रूप पूरा ग्रंथ आपने स्वतंत्रतया प्रकट किया। अब ये जो ग्रंथ प्रकट हुआ है, ये ग्रंथ जो प्रारंभ ही हुआ है, वहां पे आप देखोगे कि आचार्य चरण ने करीबन 12 कारिकाओं तक, मतलब हम सामान्य रूप से समझें तो 11.5 कारिका तक तो केवल उत्तमाधिकारी के विषय में ही चर्चा की है। और इस ग्रंथ में भी अपन देखेंगे कि कुछ लेवल्स बनाए हैं। जैसे भगवान ने गीता जी में चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, 4 लेवल वहां भी बांटे। और लोगों को जब कंफ्यूजन हुआ, मतलब खुद अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ कि ज्ञानी को आपने भक्त बताया है, तो उसको आपने भजनाधिकारी बताया है, ज्ञानी कैसे भजन करेगा? तो वहां भगवान ने स्पष्ट किया है तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्य। मेरे लिए ज्ञानी वो है कि जिसमें भक्ति है। भक्ति के बिना का ज्ञान जो है वो नहीं है हमारे यहाँ ग्राह्य। तो जो भगवान को ही अभिप्रेत नहीं है, अभिष्ट नहीं है, वो अर्थ हम नहीं करेंगे। हम तो कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंती, हम तो वो लोग हैं। तो हम भगवत शास्त्र माज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः, हम कुछ चीजों का पुनः विचार करेंगे। और वो पुनः विचार, आज ऐसा नहीं है कि यहाँ उपस्थित लोगों ने सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ देखा नहीं है, खूब देखा होगा, पाठ किया होगा, टीकाएं पढ़ी होंगी। उसमें सर्वमान्य और सबसे ज्यादा यूं देखो तो सरल श्री नरसिंह लाल जी महाराज की ब्रजभाषा टीका है। श्री नरसिंह लाल जी महाराज की ब्रजभाषा टीका एज इट इज सर्व टीकाओं के सार रूप में, जहां पे जो ग्रंथ को समझाने में जिन पूर्वाचार्यों की वाणी उनको ट्रांसलेशन में इजी लगी, और ट्रांसलेशन में भी इजी के साथ साथ जिससे इस ग्रंथ का हार्द
जल्दी से वैष्णवों को स्फुट हो। आपने उस टीका में से उस सब वाक्य रचनाओं को उद्धृत किया और ब्रजभाषा में उनको परिणित करके अपने को दिया है। तो कायदेसर कभी गोकुलनाथ जी की टीका पढ़ रहे होते हैं, कभी हम रघुनाथ जी की टीका पढ़ रहे होते हैं, किसी में हम पुरुषोत्तम जी की टीका भी पढ़ रहे होते हैं। तो नरसिंह लाल जी महाराज की ब्रजभाषा टीका का आनंद ये है कि नरसिंह लाल जी महाराज अपने वचनामृतों के साथ साथ किसी न किसी एक पूर्वाचार्य की टीका पे आधारित ही उस टीका के अर्थ से ग्रंथ का अध्ययन आप करवाते हैं। तो हम भी आज यहाँ पे जो चीजें डिस्कस करेंगे वो श्री नरसिंह लाल जी महाराज की टीका को लेंगे। वो क्या है, सबके पास होती भी है, प्रायः पुराने वैष्णवों के पास तो सबके पास निकलेगी। तो मैं खास ये बात आपको कहना चाहूंगा कि आचार्य चरण, जब आप सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ को प्रारंभ करते, आचार्य चरण जब अपने सामने नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्व सिद्धांत विनिश्चयम आप कहते हैं, तो भगवान की ही भांति। अब देखो क्या है, गीता जी में दो शब्द, गीता जी में प्रभु ने दो शब्द बहुत जबरदस्त वापरे। एक इस श्लोक में चतुर्विधा भजन्ते माम में सुकृतिन, और एक दूसरा जो वाक्य प्रभु का है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पहत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। तो वहां उन सबों को दुष्कृतिन बताया कि जो भगवान का भजन नहीं करते, वो भगवान के भजन से विमुख लोग दुष्कृतिन है। माया ने उनकी बुद्धि का अपहरण कर लिया है, वो आसुरी भाव को वो प्राप्त हो चुके हैं। तो जो आसुरी भाव को प्राप्त हो चुके हैं वो कौन है? सेवा फल विवरण में आचार्य चरण बताते हैं कि यदा भगवत कृत प्रतिबंध पदा आसुरोयम निर्धारा, जिनको भगवत कृत प्रतिबंध प्राप्त हुआ है कि वो सेवाधिकारी नहीं है, तब उनको आसुरी जीव जान के छोड़ देना चाहिए। फिर तान हम दुष्ट क्रूरान संसारेशु नराधमान में उनको ले जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सुकृतिन लोग, सुकृतिन लोग कौन है? ये आर्त भक्त हो, जिज्ञासु भक्त हो, अर्थार्थी भक्त हो या ज्ञानी भक्त हो। वो ज्ञानी वापिस भगवत भक्त होता है। तो ये चारों लोगों को भगवान ने सुकृतिन बताया है। उसी प्रकार से हमारी इस सिद्धांत मुक्तावली में भी लोकार्थी को भी महाप्रभु जी ने अधिकारी तो बताया है, सेवाधिकार तो उसको भी दिया है, भजनाधिकार तो प्रभु का दिया है। इसी कारण से आप ग्रंथ में देखोगे, लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा क्लिष्टोपि चेत भजेत कृष्णम लोको नश्यति सर्वथा। तो लोको नश्यति सर्वथा किसके लिए? क्लिष्टोपि चेत भजन भजेत कृष्णम, जो भजन कर ही रहा है, कितना ही क्लिष्ट पड़े फिर भी भजन का आग्रही है, ऐसे के लिए तो कहा कि इसको जल्दी से हो जाएगा सब, इसका लोक भी नष्ट होगा और इसको न चिरात पार्थ, बिल्कुल देर नहीं लगेगी, उस प्रकार से सब प्राप्त होगा। लेकिन इसको क्या होगा? लोकार्थी भक्त को, लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति, का क्लिष्टो भवति, मानस को क्लिष्ट पड़ेगी, तनुजा वित्तजा क्लिष्ट नहीं पड़े, उसमें से जो वो कर पाए उसको वो प्राप्त होगा। तो वो कैसे है? भगवत प्रियाचार्य मार्गस्थत्वेन, भगवत प्रियाचार्य श्रीमद आचार्य चरण के मार्ग में स्थित होने के कारण नाम निवेदन हुए बाद, आत्म निवेदन हुए बाद किसी व्यक्ति के भी सेवाधिकार उससे नहीं छीने गए। पुष्टि मार्ग में और जिस ग्रंथ की हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें कितने अधिकारियों को डिस्कस किया गया है? उत्तम, मध्यम, अधम, जगन्य और जगन्याति जगन्य। और इसका प्रमाण क्या है? पुरुषोत्तम जी की टीका, पुरुषोत्तम जी की टीका, दश दिगंत विजयी लेख वाले श्री पुरुषोत्तम जी की टीका में आप स्वयं लिख रहे हैं, एवं मत्र उत्तम, मध्यम, अधम, जगन्याति जगन्य अधिकारी कृत साधनस्य फल पर्यंत, मानसी पर्यंत, फल पर्यंत सेवा व्यवस्था कथनेन स्वतंत्र भक्ति मार्गस्य उत्कर्ष व्युत्पादित श्रीमदाचार्य। आचार्य चरण ने अति कृपा करके उत्तमाधिकारी, मध्यमाधिकारी, अधमाधिकारी, जगन्याधिकारी, जगन्याति जगन्य अधिकारी को भी फल पर्यंत सेवा की व्यवस्था सुलभ हो सके, इसके लिए स्वतंत्र भक्ति मार्ग का उत्कर्ष किया है। भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षण्यानुभूति कृत श्रीमद आचार्य चरण है। आचार्य चरण ने किसी को यह नहीं कहा कि तू यवन है इसलिए सेवा नहीं कर सकता, तू म्लेच्छ है इसलिए सेवा नहीं कर सकता। अरे अंत्यजों को भी सेवाधिकार अपने यहाँ दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? क्योंकि भागवत जी शुक मंगलाचरण, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। गीता जी, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनय स्त्रियो वैश्या तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गतिम।
अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। ये वाक्यों को कहां लाओगे पुष्टि मार्ग में, कहां एडजस्ट करोगे? यदि कह दोगे कि तेरा से ये नहीं निभे तू सेवा नहीं कर सके, तेरे से ये नहीं निभे तू सेवा नहीं कर सके, तो ये सब औदार्य, ये अदय दान दक्षता और महोदार चरित्रवान कैसे घटाओगे संप्रदाय में? ये सब के लिए तो मानना पड़ेगा कि भाई लोकार्थी है तो लोकार्थी है भले, पर वो भी भजनाधिकारी सेवाधिकारी तो है ही। और डेफिनेशन आप देखो, आज से पहले जबकि पुष्टि मार्ग में सेवा की तो बहुत सी डेफिनेशंस आचार्यों ने दी हैं, जैसे सेव्य सुख जनिका सा क्रिया या सेवा। अपने सेव्य को सुख हो वो क्रिया जब अपन करें तो उसको सेवा कहते हैं, सेव्य सुख जनिका सा क्रिया या सेवा। लेकिन आचार्य चरण चेतस्तत् प्रवणम सेवा, सबसे पहला महाप्रभु जी का देखो वाक्य कैसा है, नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत् प्रवणम। चित्त वृत्तियों का भगवत प्रति प्रवण होना ही सेवा है। अब वो योग का फाउंडेशन, पहला सूत्र योग मार्ग का क्या आया, अथ योगानुशासनम मंगलाचरण प्रथम सूत्र। उसके बाद योगश्चित्त वृत्तिर निरोधा, पतंजलि सबसे पहला योग सूत्र पाठ किए, क्या है? भक्ति भी तो योग है, जुड़ना है, प्रभु से जुड़ना है, प्रभु से कनेक्टेड रहना है। जो व्यक्ति प्रभु से डिस्कनेक्ट हो जाएगा वो भक्ति मार्ग में कैसे रहेगा बताओ? पुष्टि मार्ग की तो बात छोड़ दो, भक्ति मार्ग मात्र में जहां पे सामान्य शरण और प्रपत्ति प्राप्त होती है, वहां पे शरण मार्ग और प्रपत्ति मार्ग का जीव भी प्रभु से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता। तो आत्मनिवेदन जन्य भक्ति जिसको प्रभु ने प्राप्त की है, और जन्मांतर सहस्त्रेषु तपो ज्ञान समाधिना नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते, जिसको कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है, ऐसे व्यक्ति को महाप्रभु जी क्यों कहेंगे कि तू ये नहीं कर सके वो नहीं कर सके? जो कर सके कर, अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि। अपने यहाँ का जो सिद्धांत है वो ये है कि सबसे बड़ा अभिशाप संप्रदाय में है भगवत बहिर्मुखता। प्रभु से जो लोग बहिर्मुख हैं वो सब कैसे हैं? तदा काल प्रवाहस्ता देह चित्ता दयोपित सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मान में गए हैं वो लोग सब। वो अच्छे लोग नहीं हैं क्योंकि वो प्रभु से विमुख हैं। सबसे बड़ी वस्तु है संप्रदाय में भगवत सन्मुखता, और सन्मुखता प्राप्त करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है अपनी चित्त वृत्तियां प्रभु की तरफ जाएं। और चेतस तत्प्रवणम, तत्प्रवणम का प्रवणम, क्या चीजों का प्रवण करोगे? भगवान ने हमसे दो चीज मांगी गीता जी में, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश। अर्जुन पहले मुझ में मन लगाओ, मुझ में बुद्धि लगाओ। और 10वां अध्याय, 10वें अध्याय में प्रभु ने क्या कहा? मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्पर। प्राणों को भी मुझ में लगाओ, चित्त वृत्ति को मुझ में लगाओ। और फिर अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां, नित्य अभियुक्त हो जाओ। नित्याभियुक्त पुष्टि संप्रदाय में जिसने सेवा पधराई है और जो नित्य सेवा कर रहा है, उसके अलावा कोई भी मार्ग में कोई आदमी नित्याभियुक्त नहीं है। मैं कहता हूं there is no holiday, there is no Sunday to भगवत सेवा, there is no vacation to भगवत सेवा। आप नहीं कह सकते कायदेसर कि आज मैं सेवा ही नहीं करूंगा, आज तो मेरी छुट्टी है। नहीं, ये तो फुल टाइम ड्यूटी है। वो आपकी भाषा में कहते हैं 24/7/365। हमारे 365 नहीं कहते, हम 360 कहते हैं, क्योंकि 360 ही डेज होते हैं कायदे से। अभी अधिक मास आ रहा है, ये एक अलग विलक्षणता है, बाकी देयर आर ओनली 360 डेज, देयर आर नो 365 डेज। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हम तो 360 दिन एक ही काम कर रहे हैं, तो नित्याभियुक्त जो हैं वो हम ही हैं। और इसी कारण से देखो श्री प्रभु हमारा योगक्षेम बहुत कर रहे हैं बिना हमारे प्रार्थना किए। प्रार्थितेव ततः किम स्यात् स्वामी अभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वमि सर्व सामर्थ्यमेव च सर्व सामर्थ्य सहित सर्वत्रैवाखिलार्थकृत कृष्णस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयाम्यहम्। हम विज्ञप्ति कर सकते हैं, प्रार्थना नहीं कर सकते। हम विज्ञापन कर सकते हैं प्रभु से अपना हार्द, जो भक्त को करना भी चाहिए। प्रभु से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? तो वो जो सब प्रकार है अपने यहाँ वो पुष्टि मार्ग में है, क्योंकि पुष्टि मार्ग में कृष्णाधीना तो मर्यादा स्वाधीना पुष्टि रुच्यते। अपन कृष्ण के अधीन नहीं, कृष्ण अपने अधीन है, क्योंकि वो तो स्वयं खुद स्वीकारता है, अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र इव द्विज। भगवान ने तो खुद अपनी भक्तवशता, भक्त पराधीनता आपने श्रीमद् भागवत जी में कई स्थानों में स्वीकारी है। तो वो हैं जो श्रीमद् आचार्य चरण के अंतःकरण भूषण श्री गुसाई जी के परम लाडिले
श्री ब्रजजनों का सर्वस्व यशोदोत्सांग लालित नंदराज कुमार गोपीजन वल्लभ प्रभु अपने ऊपर कृपा करके और आप अपने घर पधारे हैं, अपन से सेवा ले रहे हैं। और वो सेवा का जो सबसे पहला ग्रंथ मतलब बाल बोध याद करो, नत्वा हरिम सदानंदम सर्व सिद्धांत संग्रह। लेकिन यहाँ स्व सिद्धांत विनिश्चय, वहां सर्व सिद्धांत संग्रह पूर्वक वहां भी बात तो वही आएगी, तदाश्रय तदीयत्व किंचित बुद्धि समाश्रय श्रवणादि ततः प्रेमना सर्वम कार्यम सिद्ध्यति, सब बातें तो वही आएंगी जो सिद्धांत मुक्तावली की हैं। लेकिन वहां क्या है, स्वतः मोक्ष परतः मोक्ष, दो विषय चल रहे हैं महाप्रभु जी के वहां पे। अब मजेदार बात क्या होती है, हम पूरे षोडश ग्रंथ के सेट को यदि देखें तो यमुनाष्टक जो है वो तो उसका मंगलाचरण है पूरे षोडश ग्रंथ का। अब मंगलाचरण तो हमेशा मंगलार्थम स्तुवंती, तो वो तो स्तवन के लिए अपन समझे कि अपन श्री यमुना जी से प्रार्थना करके इस पुष्टि के पथ में अग्रसर हो रहे हैं। अब जैसे ही आप सबसे पहले आए तो आपको क्या मिला, बालबोध मिला। अब बालबोध की मजेदार बात क्या है, वो एक प्रकार का ऐसा टेबल है बालबोध जो आपको पहले ही पूछता है पुष्टि मार्ग में क्यों आना है, पुष्टि मार्ग में आके क्या करोगे। जल्दी से कोई संप्रदाय आपको ये नहीं पूछता है, संप्रदाय सीधा एंडोर्स करता है, हाँ आ गए, तुमने कंठी ले ली, तुमने ब्रह्म संबंध ले लिया, तुम संप्रदाय में आ गए। बालबोध आपको सबसे पहले पूछता है क्या है भाई, मरने की इच्छा है कि नहीं, मोक्ष की बात सबसे पहले। तुम मरोगे तो सही, तो क्या करना है, जैसे आगे आचार्य चरण बताते हैं ना अपने को क्या करना है, त्रिदुख सहनम धैर्यम आमृते सर्वतः सदा, जब तक मरो नहीं तब तक धैर्य रखना है। तो सबसे पहले तो तुम धैर्यवान हो कि नहीं, बाल बोध तुम्हारी पहली टेस्ट करता है। इसलिए वहां सर्व सिद्धांत संग्रह, वहां भी क्या है, महाप्रभु जी के पास दो प्रलोभन है, भाई खुद मोक्ष मुक्त होना चाहते हो कि तुमको कोई और मोक्ष दे, वो तुम्हारी इच्छा है। वो एक स्वतः मोक्ष है, एक परता मोक्ष। स्वतः मोक्ष में जाना है तो सांख्य योग आदि मार्ग है, परता मोक्ष में जाना है तो शिव विष्णु आदि शैव वैष्णव आदि मार्ग है। तुम विचार करो तुमको किस ढंग से जाना है, किस ढंग से मुक्त होना है। कहने का मेरा मतलब यह है कि चतुर्विध पुरुषार्थ में अंतिम पुरुषार्थ जो है उसको पहले डिस्कस किया गया है, पुष्टिमार्गीय मोक्ष। पुष्टिमार्गीय पद्धति से मोक्ष तो चतुश्लोकी में आप निरूपण करेंगे ही, क्योंकि वहां पुष्टिमार्गीय चतुर्विध पुरुषार्थों का भक्ति परक आपने पूरा राणा व्यास जी को आपने उपदेश किया है। तो वहां जाके तो पुष्टि मार्गे हरिर्दास्यम अर्थो ही हरिरेव च कामो हरिर्दुदक्षैव मोक्ष कृष्ण से चेत ध्रुवम, अपनी खुद की इस कारिका के आधार पे ही आप सर्वदा सर्वभावेन भजनियो ब्रजाधिप इत्यादि वाक्य आप कहेंगे चतुश्लोकी में। लेकिन अभी यहाँ बाल बोध में महाप्रभु जी सबसे पहले चेक कर रहे हैं मुमुक्षुत्व, तुम्हारे में मुमुक्षुत्व है कि नहीं, मुक्ति की इच्छा है कि वो ही वापिस करते रहना है, जन्म ना है मरण ना है, जन्म ना है मरण ना है, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही कार्यक्रम में रहना है तुमको, ये कुछ मुक्ति उक्ति की इच्छा है। देखो जब हम किसी संप्रदाय में आ रहे हैं तो संप्रदाय का काम बनता है कि हमको एश्योर करे कि हमारी अधोगति नहीं होगी, हमारी ऊर्ध्वगति होगी, उत्तम गति होगी, या हमको भगवत धाम प्राप्त होगा, भगवान प्राप्त होंगे। कम से कम इतना एश्योरेंस चाहिए, नहीं तो मैं क्यों आऊं संप्रदाय में। अरे भाई वो स्कूल में आप जाना ही क्यों चाहते हो जहां से डिग्री नहीं मिले। तो सबसे पहले चीज बाल बोध अपने को ये बताता है कि अरे बच्चों ये तो बताओ मुक्त होना है कि नहीं। तो बस वो मोक्ष की जहां व्यवस्था दी गई है वो बाल बोध है। वहां पे सब बात करके महाप्रभु जी कहते हैं आओ अब मैं तुमको ये जो तुम मुक्त होना चाहते हो तो अब मैं तुमको प्रकार बताता हूँ कि क्या है। भाई संसार से कनेक्टेड रहना है कि ठाकुर जी से कनेक्टेड रहना है, किससे रहना है बताओ। संसार से कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, वो वाईफाई तुमको ऑल टाइम प्राप्त है, वो तो कनेक्शन तुमको पूर्ण रूप से प्राप्त है। तो इफ यू वांट टू गो टू द 4G यू कैन गो टू 4G, इफ यू वांट श्रीजी कम टू मी। तो महाप्रभु जी अब आपको दे रहे हैं एक नया कनेक्शन और वो है आपका श्रीजी से कनेक्शन। श्रीजी से कनेक्टेड रहने के दो प्रकार आपको दिए गए, चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। एक तनुजा एक वित्तजा। तन से आप कनेक्ट हो जाओ प्रभु से, धन से आप कनेक्ट हो जाओ प्रभु से, अंततोगत्वा दोनों ही वहीं आने हैं। जहां तन होगा वहां धन लगाना ही पड़ेगा, और जहां धन होगा वहां मनुष्य का तन और मन सब खिंच के आएगा ही आएगा। ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं कि किसी का धन कहीं गया हो और वहां उसके पीछे पीछे उसका मन नहीं गया हो। और जहां मन गया है वहां व्यक्ति अपने तन को अपने आप ही ले गया है, वहां उसको ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़े हैं। लेकिन अपने यहाँ तनुजा जो है वो सर्वोत्तम कल्प है, सर्वोत्तम पक्ष है। तनुजा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि साधन दशा में ये दो ही प्राप्त है। अब लोग पूछते हैं सेवा त्रैविध्यम है कि सेवा द्वैविध्यम।
2 प्रकार से सेवा है, 3 प्रकार से सेवा है। आप कैसे भी चले जाओ, सेवा तो 2 ही प्रकार की रहने वाली है। साधन दशा को अगर हम और फल दशा, ये 2 प्रकार से हम देखेंगे तो तनु वित्तजा और मानसिक। और अगर हम अभी मान के चलें, जैसे मेरे जैसा तो मान लेता है कि अभी हाल मुझे मानसी प्राप्त नहीं है, तो अभी मेरे पास 2 ही सेवा है, तनुजा सेवा और वित्तजा सेवा। अपने में से कोई निकले ऐसा मानसी जिसको हो चुकी हो सिद्ध, तो मुझे बताना, मैं दंडवत करने जरूर आऊंगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है, अभी हम लोग साधन दशा में। अरे कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरु साधनम च तत्। साधन दशा में तो महाप्रभु जी को भी गुरु करना पड़ता है, गोपी जनों को भी गुरु करना पड़ता है। कौंडिन्य ऋषि के प्रसंग में पूरी आख्यायिका दी हुई है, कैसे उनको वैराग्य की सिद्धि, कैसे उनको सर्व विषयों से वैराग्य और भगवत चरणारविंद में अनुराग भगवान अनंत शेष जी ने उनको कैसे सिद्ध कराया, और उनके उपदेश से उसी प्रकार से समस्त सांसारिक मोह मायाओं से किस प्रकार से उस वैराग्य को धारण करके गोपी जनों ने अपने आप को डिस्कनेक्ट संसार से किया और रिकनेक्ट प्रभु से किया। रिकनेक्ट में कहूंगा क्योंकि वो तो कनेक्टेड ही हैं गोपी जन, तो उनको क्या कनेक्शन बार बार देना। लेकिन अपन उस प्रसंग से देख सकते हैं कि कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरुवः साधनम। साधन में जब तुम सेवा मार्ग में आ जाओगे, जब तुम सेवा दशा में आ जाओगे कि तुम सेवा करना चाहते हो, तो वहां तुमको 2 भक्ति की 2 प्रकार से इस सेवा की आवश्यकता पड़ेगी। एक होगी तनुजा और एक होगी वित्तजा। तो यहाँ आचार्य चरण अपने को बहुत अच्छे ढंग से बता रहे हैं कि चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनु वित्तजा। लेकिन जब हम ग्रंथ की दृष्टि से देखेंगे कि ग्रंथ में सेवा के कितने प्रकार हैं, तो मानसी भी व्यक्ति करते हैं। जिनको मानसी प्राप्त होती है वो मानसी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको अपने आप कोई प्रकार का लाइव दर्शन संजय की तरह शुरू हो गया है और अब उनको बस लीला के दर्शन हो रहे हैं और वो आनंद मग्न हैं, वो उसमें सेवा नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता तो बीच युद्ध में राजा आस्करण के ऊपर कड़ी नहीं ढुलती। आज उनको कड़ी ढुली है। आज उनको वाघाजी राजपूत को बताया है नवनीत लाल ने कि मेरे को यहाँ पे पूरन पूरी कुछ रही है, तुम कुछ भी करो, राके मेरे को कुछ धरो के जिससे कुछ स्नेह युक्त पदार्थ आवे और मेरे ये पूरन पूरी ये तवा पूरी उतरे। भागे जहां से भी भागे। ये क्या है? ये विशेष तश्चेद आज्ञा स्याद अंतःकरण गोचर। तो है ही, अंतःकरण में विशेष आज्ञा तो प्रभु की है ही, लेकिन ये मानसी है। ये वास्तव में मानसी सेवा है कि जिस मानसी सेवा में लोग तल्लीन होकर, और वहां भी कर्म तो करते ही हैं सेवा का। ऐसा नहीं है कि वो उससे च्युत हो जाते हैं कि अब हमको क्या करना, अब हमको लाइव टेलीकास्ट लीला का हो ही रहा है। दैट इज नॉट मानसी। मानसी इज ऑल्सो सेवा। यू हैव टू डू सेवा इन मानसी। दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड, आई हैव हर्ड एंड आई हैव अंडरस्टूड। मैंने कहा तो मुझे तो मानसी प्राप्त नहीं, मैं कैसे उसके विषय ज्यादा। और आश्चर्य देखो, बहुत जबरदस्त आश्चर्य देखो कि 9 के 9 टीकाकार में से किसी भी टीकाकार ने मानसी को नहीं समझाया। मानसी सा परामता मानसी फल रूपा इति। वो फलात्मक सेवा है, वो फल रूप है संप्रदाय में। इतना ही बोल के मानसी के पक्ष को ड्रॉप कर दिया गया है या लीव कर दिया गया है। वहां से आगे जो भी बात की गई है तनुजा और वित्तजा की गई है। इसलिए वो तनु वित्तजा द्वंद्वान्ते श्रूयमान द्वंद्व समास से जो लिया गया है उसको समझना पड़ेगा कि साधन दशा में तो वो भी 2 दशा है। दूसरा, अभी मैं एक आपको सिनॉप्सिस दे रहा हूं ग्रंथ का, और वो ग्रंथ के सिनॉप्सिस में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपका शरीर क्या है? जड़। आपकी अंतरात्मा क्या है? चिदानंद, गुप्तानंद। अपनी भाषा में कहते गुप्तानंद, बराबर। और अब आपका जो द्रव्य है वो द्रव्य कैसा है? तो अति जड़ है। अब देखो मजा, जब हम तन की बात करते हैं कि भाई तनुजा, तन से उत्पन्न होने वाली सेवा, तो तनुजा के साथ क्या जुड़ेगा? जीव का अहंकार। जीव का अहंकार, अहंकार हमेशा देह से जुड़ा हुआ होता है और वो इतना जबरदस्त व्याप्त होता है देह में कि समझो आपको किसी ने एक तमाचा खींच के दिया, आप पूछोगे नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। एक और सामने आप पहले दोगे और उसके बाद पूछोगे क्या बात थी भाई, क्यों हाथ उठाया, क्योंकि आपको ये बात का बोध है कि इसने मुझे मारा। तो आपकी जो तनुजा है वो आपके अहमता से प्रेरित सेवा है, तनुजा सेवा। दूसरी, द्रव्य में क्या जुड़ा हुआ है? ममता। अहमता और ममता कैसे पदार्थ हैं भाई, आप मुझे बताओ। अरे भाई, एक तो शरीर आपका लाइव है,
और आपके साथ ये जो सब चीजें पड़ी हुई हैं ये सब जड़ है। अब चिदानंद जो जीव है इस समय, वो जब तनुजा करेगा तो तनुजा एक अलग व्यवस्था बनेगी और वित्तजा एक अलग व्यवस्था बनेगी। तो जिस अहंता ममता नाशे सर्वथा निरहंकृतौ स्वरूपस्थो यदा जीवा कृतार्थस्य निगद्यते, वहां कृतार्थता जिस अहंता ममता के नाश के साथ निरहंकृत होने की बात आप बाल बोध में पहले बोल आए हैं, उसके बाद अब बता रहे हैं अब तुमको सेवा में क्या करना है। ये अहंता तुम्हारे सर न चढ़े, क्योंकि ये भगवत प्रकृति है अहंकार। तुमको अपने ऊपर स्वात्मारोपित नहीं करनी चाहिए। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। भगवत प्रकृति है तुम्हारी प्रकृति, तुमने कहां से मान लिया अहंता। तो जो भगवत प्रकृति है उसका भगवत सेवा में विनियोग करो, तो देह को लगाओ प्रभु की सेवा में। तो जब प्रभु की सेवा में देह लगेगा तो अपने जीव का अहंकार दासत्व में परिणित होके दासो हम होके भगवत सन्निधान में जाएगा, उससे दैन्य की प्राप्ति। और जिसको अपना सर्वस्व मानते हो, जिसमें इतने ममत्व रखते हो, जब उन पदार्थों को प्रभु में समर्पोगे, इष्टम दत्तम हुतम जप्तम व्रतम यच्चात् मन प्रियन दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम, तो वो निवेदन जब तुम करोगे तब तुम्हारी ममता भी प्रभु में जुड़ेगी और वो ममता तुम्हारी ममता से प्रभु के प्रति एक ममत्व तुम्हारे अंदर आएगा कि मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर जी की झांपी, मेरे ठाकुर जी की जारी, मेरे ठाकुर जी की वेणु जी, मेरे ठाकुर जी के श्रृंगार, मेरे ठाकुर जी के पात्र, मेरे ठाकुर जी की सामग्री, ये मेरे 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 कब आएगा प्रभु का? जब तुम्हारा वित्तजा वहां जाएगा तो प्रभु में आएगा कि हाँ ये सब मेरा और ये प्रभु मेरा। तो ये प्रभु में मैं पना लाने के लिए और अपने मैं पना को कंट्रोल करने के लिए एक साइकोलॉजिकल सेटअप जो श्री महाप्रभु जी ने ह्यूमन साइकोसिस को विचार के दिया है कि व्यक्ति को पकड़ के सेवा में लाना है तो उसका तन लगाओ और उसका धन लगाओ, तब जाके मन अपने आप आएगा। और जहां मन आएगा वही व्यक्ति की चित्त वृत्तियां आएंगी। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। दूसरा, चक्षुश्रोत्रम स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। हम जितना भी विषयानंद ले रहे हैं वो विषयानंद मन के हिसाब से ही ले रहे हैं। मन एक एक इंद्रिय को पूछता है क्या करना है भैया बता, और जब इंद्रियां उसको बोलती हैं हे मन भैया ये कार्य मेरा करवा दो, तो फिर मन उस तरफ चल देता है उस कार्य की सिद्धि में। इसलिए उसके दो लक्षण बताए गए हैं, संकल्प विकल्पकात्मकम मना। मन के हमेशा मन के पास दो ही बात होती है, या संकल्प या विकल्प, या ये करना है या ये नहीं करना। उसके लिए वो क्या करता है, बुद्धि के पास जाता है। और बुद्धि के पास फिर दो लक्षण होते हैं, अनारंभो ही कार्याणाम प्रथमम बुद्धि लक्षणम आरब्धस्यांत गमनम द्वितीयम बुद्धि लक्षणम। पहले तो जो नहीं हुआ उसको शुरू कैसे करना बुद्धि बताती है, और उसके बाद बुद्धि क्या बताती है, जो हो चुका है उसका कैसे समाधान करना या उसको कैसे रिपेयर और रिडिस्कवर करना उसकी सही चीज को। तो ये सब जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों से मिलकर ही बनता है अंतःकरण चतुष्टय। अब ये अंतःकरण चतुष्टय की सब चीजें जो हैं वो अंततो गत्वा देहाधीन है, क्योंकि ये मन, ये बुद्धि, ये चित्तवृत्तियां, ये अहंकार, ये सब किसमें भरा हुआ है, ये तुम्हारी देह में भरा हुआ है। और अब जो देह में इस अहमता का स्पंदन है ना, उससे सर्वाधिक कनेक्टेड वस्तु है तुम्हारी आत्मीय पदार्थ। और इसी कारण से नवारे सर्व कामानाम सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामानाम सर्वम प्रियम भवति। जो भी कुछ तुमको प्रिय हो रहा है वो तुम खुद तुमको प्रेम करते हो इसलिए प्रिय हो रहा है। जिस दिन तुम खुद को प्रेम करना बंद कर दोगे ना, उस दिन सब कुछ अप्रिय हो जाए। तो इसी कारण से आचार्य चरण ने औपनिषदिक संदर्भों को लेते हुए, वैदिक संदर्भों को लेते हुए, पौराणिक मान्यताओं को और आगमोक्त मतलब जिनमें भगवत धर्म को जीवन में लाके यापन कैसे करना उसका, यावत देह जब तक है तब तक। जैसे आचार्य चरण का कितना एक सुंदर मत है, यावत देहानुसंधानम तावद वर्णाश्रम धर्मा अनुकरणीय। जब तक तुम्हारे को देहानुसंधान है कि मैं कौन और मेरा क्या, तब तक वर्णाश्रम धर्म जुड़े हुए हैं। ब्राह्मण को ब्राह्मण के कार्य कर रहे हैं, क्षत्रिय को क्षात्र धर्म का निर्वहन करना है, चाहे भले मानसिक रूप से आज करें, और बाद में वैश्य को वैश्यवृत्ति करनी है और शूद्र को सेवा धर्म का निर्वहन करना है। तो ये सब चीजें जो बताई गई हैं वो यावत देहानुसंधानम तावत वर्णाश्रम धर्मा अनुकरणीया। यदि ऐसा नहीं होता, केवल दैवी जीव होने से, पुष्टि मार्गी होने से काम चल जाता, तो फिर क्यों प्रभु चरण चतुर्थ कुमार श्री गोकुलनाथ जी आप इतनी डिटेलिंग करते कि तो वो या की सखी हैं, या ते प्रगति हैं,
यासु इनके संबंध हैं, सो या जन्म में ये एक क्षत्रिय के घर जन्मे, तो या जन्म में ये एक ब्राह्मण के घर जन्मे, तो या जन्म में ये एक वैश्य के घर में जन्मे। अरे ये डिटेल देने से हमको क्या मतलब है कि कौन से घर में जन्मे और क्या थे, नहीं। लेकिन हम यदि चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनुवित्तजा करने जा रहे हैं तो हमको ये चीज जाननी पड़ेगी कि हमको किस प्रकार से करनी है। क्या मैं ब्राह्मण हूं तो मेरे क्या ब्राह्मणोचित मेरे धर्मों को छोड़ के भगवान के पास आऊं, नहीं। स्वधर्म मनुतिष्ठन वही भारत द्वैगुण्य मन्यथा, बालबोध छल्ला वाक्य महाप्रभु जी का, कि भाई तुमको समझो ये बात को, अपने स्वधर्म का परित्याग तो तुम नहीं कर सकते। और स्वधर्म के ऊपर एक वस्तु है आत्मधर्म, जो भगवत धर्म है, जो भगवत सेवा है, जो सस्यायम ये वो धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन के अंतर्गत आता है। और मैं तो वैष्णव कहता हूं कि हम लोग सब जो शब्द प्रयोग करते हैं धर्म कर्म, तो आप देखो कि स्वस्यायम ये वो धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन, एक धर्म बताया और कर्म कहां बताया, जगदीश के वचन में, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो आया कि नहीं आया, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव मंत्रोप्येकस्तस्य नामानि, यानी कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो पुष्टिमार्गी का धर्म भी सेवा, पुष्टिमार्गी का कर्म भी सेवा। तो सेवा जो मार्ग है वो सेवा मार्ग को प्रकट करने के लिए, वो भी किसका मनोबलिष्ठ, श्री अथ यदैव श्री गोकुल स्वामी स्वमनोभिलषित शुद्ध पुष्टि प्रकार प्रकटयितुम मना कृतवान। जब स्वयं प्रभु ने इच्छा करी कि अब जैसा मार्ग और जैसा संप्रदाय और जैसा सेवा का मार्ग मुझे चाहिए अब मैं वो प्रकट करूं, तब आपने श्रीमद आचार्य चरण को आज्ञा की है कि अब तुम भूतल पे अवतार लो, द्विज कुल प्रगटे श्री हरि, सुंदरता की रास बनो और आके इन लोगों को मेरे मार्ग में लाओ जिससे मेरी सेवा कर सके। और संपूर्ण पुष्टि मार्गियों का सेटअप, जैसा हम कहते हैं कि इच्छा मात्रेण मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि वचसा वेद मार्गम ही पुष्टि कायेन निश्चय। तो उसके बाद महाप्रभु जी समझाते हैं कि तस्मात् जीवा पुष्टि मार्गे भिन्ना एव न संशय भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यथा भवेद। आपकी सृष्टि ही प्रभु ने अपनी सेवा के लिए की है। यदि आपसे सेवा नहीं करानी होती तो आपको पुष्टि मार्ग में लाते ही नहीं। आज किसी से यदि सेवा नहीं बन पा रही कोई भी प्रकार से, तो आप समझ रहे ना कि पुष्टि मार्गीय गुरु मुखोद्गत सगद्य पंचाक्षर मंत्रोच्चारण जन्य केवल तुलसी पत्रों का निवेदन मात्र ही इस जन्म में सेवा प्राप्त थी। क्योंकि इसी सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ की टीका में श्री गोसाई जी आगे बताएंगे कि भगवत सेवा वैयर्थ्या संभवात जन्मांतरेषु फलिष्यति। आज कितने ही पुष्टि मार्गीय वैष्णव जो हैं वो ब्रह्म संबंध लेने के बाद भी सेवा से विमुख बैठे हुए, नहीं करते हैं सेवा, नहीं जाते हैं ठाकुर जी में, नहीं दंडवत करते हैं। उनके पीछे उनके वडील वैष्णव पड़े रहते हैं, सेवा में नथी आओ तो, सेवा में नथी आओ तो, सेवा में नथी आओ तो। अरे जिस दिन जिस समय उसके अधिकार फलित होने होंगे, जिस दिन उसकी पात्रता सिद्ध होगी, उस दिन वो स्वयं ठाकुर जी को ढूंढता हुआ आएगा और गुरुजनों से और वडीलों से पूछेगा क्या छे मारा ठाकुर जी, मैंने ठाकुर जी की सेवा करवी छे। उस दिन के लिए वेट तो करो। अरे 252-84 वैष्णव की वार्ता में पढ़ो, क्या उनको एक जन्म में सब प्राप्त हो गया? लीला संबंध होने के बावजूद, मुख्य स्वामिनियों में से प्राकट्य होने के बावजूद भी 3-3 जन्म वेट करने के बाद उनको महाप्रभु जी मिले, उनको गोसाई जी मिले। और गोसाई जी महाप्रभु जी मिलने के बाद भी कुछ लोगों का एक जन्म हुआ और तब जाके दूसरे जन्म में उनको भगवत प्राप्ति और भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई है। तो आज हम कैसे ऐसा माने कि जिसने ब्रह्म संबंध लिया है वो सेवा नहीं कर रहा है, उसको सेवा मिली नहीं। उसको इतनी सेवा थी कि वो भगवत सन्मुख हो और गुरु मुखोद्गत सगद्य पंचाक्षर मंत्रोच्चारण जन्य उसको जो आत्म निवेदन दे रहे हैं श्री महाप्रभु जी और ठाकुर जी, उसके द्वारा उसके हाथ से वो तुलसी पत्र चरणारविंद में प्रभु के समर्पे जाएं। इतना भी आपको लगता है कि ब्रह्मांड में चराचर जगत में सृष्टि में जितने भी लोग हैं उनमें अगर आप रेशियो निकालोगे ना तो सम पॉइंट डेसिमल्स में वो लोग आएंगे कि जिनको इतना भी सौभाग्य मिला हुआ है कि जो पुष्टि पुरुषोत्तम के चरणारविंद में तुलसी पत्र समर्पवा दें। मेरे कहने का तात्पर्य है ये सौभाग्य के चिंतन का संप्रदाय है, दुर्भाग्य पे बैठ के रोने का बौद्ध मार्ग नहीं है। ये बौद्धों का मार्ग नहीं है जहां हम बैठ के रुदन करें और चिंतन करें कि दुख जीवन में क्यों आ रहा है। अरे हम तो ये चिंतन कर रहे हैं कि पुष्टि मार्ग में रह के भी सुख क्यों नहीं आ रहा है और सुख क्यों नहीं हम उतना ले पा रहे हैं जितना सुख हमको महाप्रभु जी गोसाई जी ने प्रॉमिस कर रखा है, जितना सुख हमको श्रीनाथ जी यमुना जी देना चाह रहे हैं।
वो सुख हम कैसे लेंगे? तो उसके लिए तो सेवा बताइए, क्योंकि संसार दुख निवृत्ति ब्रह्म बोधनम, अवांतर फलत्वेन अपने आप प्राप्त हो रहा है। तो अवांतर फलत्वेन तुमको क्या दे रहे हैं महाप्रभु जी? एक पे एक फ्री। जैसे अहमदाबादियों को तो खास फ्री है कि एक चीज पे एक चीज फ्री मिले, तो अहमदाबादी वैष्णव बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि मैंने ये वस्तु एक ऊपर फ्री मड़ी। तो वहां तो देखो संप्रदाय में क्या गजब गजब की बात महाप्रभु जी ने की है कि चेतस तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनु वित्तजा तत्संसार दुखस्य निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम। अरे जीव, तू समझ कि तेने यदि तनुजा और वित्तजा दोनों करी तो उससे तुझे प्रभु प्राप्त तो होंगे ही, भक्ति की प्राप्ति तो होगी, परम फल मानसी तो कोई ना कोई दिन सिद्ध होगी, लेकिन सबसे पहले जो वस्तु तुझे मिलेगी वो है संसार दुख निवृत्ति। और एक वस्तु मैं कहना चाहूंगा, जो लौकिक में स्वस्थ नहीं है, जिसका लौकिक सुधरा हुआ नहीं है, जिसका लौकिक अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति से पुष्टि भक्ति नहीं हो सकती। पुष्टि भक्ति मार्ग के लिए संसार अनुकूल चाहिए। भार्यादिर अनुकूलश्चेत कार्यते भगवत क्रियाम उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत। है ताकत किसी में आज की तारीख में घर छोड़ने की? कृष्णार्थ ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम, महाप्रभु जी का तो वचन है, ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चित त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम यत् प्रयुंजीत। कृष्णो अनर्थस्य वारख, अनर्थ से प्रभु बचाएंगे। सब चीजों को प्रभु में विनियोग कर दे प्रभु को दे। हम कहा कह रहे कि हमारे यहाँ के हमारे प्रभु को दे। तेरे घर विरासते ठाकुर जी को भी पहले लाड लड़ा, जी भर के भोग धर, जी भर के सामग्री कर। वैष्णव तो पूरे दिन यही चिंतन करता रहता है, पाछड़ कौन ले से, पाछड़ कौन ले से। अरे पाछड़ तुम लो और तुम्हारे साथ लिवाओ चार वैष्णव को। इतनी गौरवशाली पुष्टि मार्ग की परंपरा के वैष्णव एक दूसरे को प्रसाद लिवाओते, सब बंद कर दीनी। क्यों बंद कर दीनी भाई? लिवाओ सबको प्रसाद, ठाकुर जी को आनंद से धरो। एक बड़ा प्रश्न वैष्णव जगत में, मारा पाछड़ कौन कर से? आटलू हूं प्रकार सेवानो बढ़ावी दऊं तो पाछड़ कौन कर से? अरे पाछड़ कौन कर से तो आगड़ कौन करे से? अभी तुम तो करो, तुम तो पुष्टि मार्ग को भरपूर जियो, तुम तो आनंद लो। तुम अपने लिए इस संप्रदाय में आए हो, तुमने अपने आत्मनिवेदन, अपने ब्रह्म संबंध के समय अपने लोगों को प्रभु में समर्पित करने का वचन तुमने दिया है, उनने नहीं दिया है। आप आनंद लो संप्रदाय का, आप पुष्टि मार्ग को आनंद लेके और इस जगत में उस आनंद का विस्तार करो कि लोगों को देख के लगे कि यार ऐसा आनंद हमको कब मिलेगा। पुष्टि मार्गियों को देख के ऐसा लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। आज देखो, बुरा मत लगाना, इस्कॉन में नाचते कूदते लोगों को देख के लगता है लोगों को यार ये तो क्या मस्ती में रहते हैं। वो मस्ती तो आपको भी दी गई थी, आपने वो मस्ती से बाहर आके आपने त्रस्ती ले ली, आप त्रस्त हो गए। वो मस्त हो गए, आप त्रस्त हो गए, और बाद में क्या हो गया? अपन भ्रष्ट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमको जो कृष्ण नाम की मस्ती, हमको जो कृष्ण सेवा की मस्ती, हमको जो कृष्णमय जीवन जीने की मस्ती महाप्रभु जी ने चेतस तत्प्रवणम सेवा के माध्यम से दी थी, तत्सिद्धि तनुवित्तजा दी थी। न उसमें हमने संसार दुख निवृत्ति प्राप्त करी और न ब्रह्म का बोध ही अपन ने लिया। अब बताओ महाप्रभु जी क्या करें? वो तो पहले ही अपना नाम लेके बैठे हैं, दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, वो प्रयत्न कर सकते हैं। उनके प्रयत्नों को सार्थक तो आपको करना है। आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मना, ये कहा जाएगा वाक्य। महाप्रभु जी कितना प्रयास करेंगे, आपके गुरुजन कितना प्रयास करेंगे, आपके वडील कितना प्रयास करेंगे, आप प्रयास आपको करना है, हमको करना है। और इसी कारण से आप देखो किसकी सेवा करें, हम कहां जाए। आज इतना सारा चल रहा है संप्रदाय में और संप्रदाय से बाहर भी। आज अब व्यक्ति कंफ्यूज है, इसी प्रकार का कुछ कंफ्यूजन आप देखो कि हमको महाप्रभु जी के कार्यकाल में भी ध्वनित होता है। अचानक से सब बात छोड़ के महाप्रभु जी सीधे इस बात पे आ जाते हैं, परब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत् द्विरूपम तद्य सर्वम स्याद् एकम तस्माद् विलक्षण। कैसे आ गए महाप्रभु जी वहां? क्यों बताना पड़ा परब्रह्म तू कृष्णो ही, कृष्ण ही परब्रह्म है? क्योंकि कोई और भी क्लेम करता होगा उस टाइम के, नहीं ये भी परब्रह्म है, ये भी परब्रह्म है, वो भी परब्रह्म है। अरे भाई कृष्ण भूवाचक शब्द नश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। परब्रह्म तो कृष्ण ही हैं, ये तो निर्विवादित सत्य है। अरे भगवान ने खुद ने अर्जुन को कहा है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं। वो मायावादियों का शिरमौर, अद्वैत सिद्धि का रचनाकार मधुसूदन सरस्वती, वो मंगलाचरण करता है गीता भाष्य का। और मधुसूदन सरस्वती जैसा उद्भट विद्वान महाप्रभु जी का समकालीन, कॉन्टेम्पररी टू श्रीमद आचार्य चरण,
वो आप गीता भाष्य के मंगलाचरण वंशी विभूषित करान नवनीर दाबात में स्पष्ट कहते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। मायावादियों को यह अनुभव है, ब्रह्मवादी लोग बैठे बैठे पूछ रहे कहे कौन सेवा करनी, क्या सेवा करवी, केवी रीते सेवा करवी। आश्चर्य। अयमेव महामोहो इदमेव प्रतारणम यद कृष्णम न भजेत प्राज्ञ शास्त्राभ्यास प्रकृति। अरे शास्त्रों को पढ़ के भी यदि कृष्ण सेवा करने का मन नहीं हो रहा है तो इससे बड़ी प्रताड़ना तो तुम्हारे साथ विधि विधान ने कोई की नहीं है, तुम्हारे प्रारब्ध ने, कि तुम्हारे को अति मोह हो चुका है। ये मोह को छोड़ना पड़ेगा, तो मोह से बाहर आना पड़ेगा और अपने सांसारिक मोह को, विषय वासना को, विषयानंद को ब्रह्मानंद में, ब्रह्मानंद को भजनानंद में बदलना पड़ेगा। तब महाप्रभु जी द्वारा प्रॉमिस्ड स्वरूपानंद का रसास्वादन कर पाओगे। नहीं तो कृष्णाधरामृत स्वाद सिद्धि कैसे होगी, मुझे बताओ। कृष्णाधरामृत स्वाद सिद्धि कैसे होगी? जप्यम कृष्ण रसार्थी भी आपने कभी सुना है किसी का नाम लो और किसी के अधरामृत मिले? ठाकुर जी का नाम लो और महाप्रभु जी के अधरामृत मिले, महाप्रभु जी का नाम लो ठाकुर जी के अधरामृत मिले। अरे क्या विलक्षणता है संप्रदाय में, क्या वैदुष्य अपने संप्रदाय का, क्या अपने को प्राप्त है, क्या अपने को महाप्रभु जी का नाम लेने से कृष्णाधरामृत स्वाद सिद्धि हो रही है। आज महाप्रभु जी जो स्वरूपानंद भजनानंद आप प्रदान करना चाह रहे हैं, अरे आप विचार करो। सुबोधिनी में आप देखो, रास पंचाध्यायी में, रास पंचाध्यायी की पहली कारिका यहां से शुरू होती है कि जब प्रभु ने विचार किया कि ब्रह्मानंदात समुद्रत्य भजनानंद योजने, कि अब मैं इनको ब्रह्मानंद से बाहर निकालू। ब्रह्मानंद दे दिया, पुरुषों को जितना देना था, अब जितना स्त्रियों को देना है, अब भजनानंद का दान करना है। तो तेतु ब्रह्म हरदम नीता दता कृष्णन चौद्रता, वहां हो गया सब। गोप बालकों को, नंदराय जी, वृषभान जी, सबको करा दिए दर्शन ब्रह्म हृदय में कि ये रहा व्यापी वैकुंठ, ये इस प्रकार से मैं व्यापी वैकुंठ का अधीश्वर हूं और मैं ही सब कुछ हूं चराचर जगत में। जब सर्व नियमता जगन्नाथ के दर्शन भगवान के उस ब्रह्म हृदय में कर लिए, उनको ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया, वो सब ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए और उनको हुआ हाँ हमारे को मोक्षावस्था तो जीते जी प्रभु ने कृपा करके प्राप्त करा दी। अब आई बारी किसकी? अब स्त्रियों के उद्धार की बारी आई। तो स्त्रियों का उद्धार ब्रह्मानंद से नहीं होगा, उनको तो देना पड़ेगा क्या? भजनानंद। और भजनानंद के साथ दान करना पड़ेगा स्वरूपानंद। इसलिए आत्मना प्रथमा लीला मनसा तु ततः परा, वाक् प्राणेस्तु तृतीयास्तु इंद्रियेषु ततः परा, शारीरी पंचमी वाच्या ततो रूपम प्रतिष्ठितम। रूप की प्रतिष्ठा रास में प्रभु को करके और पंचधा रमण प्रभु को प्रदान करना पड़ा है, क्योंकि पंचधा रमण प्रदान किए बिना भजनानंद सिद्धि नहीं होगी। और वो पंचधा रमण, आपको मैं गजब की बात बताऊं, आप कभी शांति से प्रणय गीत देखो, आप कभी शांति से प्रणय गीत देखो कि प्रभु के जो प्रश्न हैं, प्रभु ने जो गोपी जनों को प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों में पूछा है कि सहजा देश कालोत्था लोकवेद निरूपिता संयोगजा स्पर्शजा से मुक्त हुए कि नहीं। और फिर गोपी जन जो उत्तर दे रहे हैं उसमें वो अपने को ब्रह्म संबंध अधिकारी बता रहे हैं कि हाँ हम सहजा देश कालोत्था लोकवेद निरूपिता संयोगजा स्पर्शजा से मुक्त हुए हैं, और तब जाके उनको रास का सुख प्रभु ने प्रदान किया है। तो ब्रह्म संबंध की जो एक्चुअल कंडीशन है कि ब्रह्म संबंध के समय पंचदोष निवृत्ति पूर्वक भगवान जीव का अंगीकार करता है, वो तो गोपी जनों के साथ रासांतर्गत भी हुआ है। दो श्लोकों में भगवान के प्रश्न हैं। उस प्रकार से प्रभु ने प्रश्न किए हैं ये 5 विषयों में कि ये चीज का उत्तर दो मुझे, तब मैं तुमको रास का सुख प्रदान करूं। और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि हमारे को, क्योंकि महाप्रभु जी का वचन है अन्यथा सर्वदोषाणाम न निवृत्ति। वहां गोपी जनों को भी परम निर्दुष्ट जान के, निर्दोषम ही समम ब्रह्म जान के आत्मा रामो पीरी रमत, तब रमण का सुख प्रदान किया है ब्रज भक्तों को। तो जो ब्रज भक्तों को सुख प्राप्त हुआ है वो भी ब्रह्म संबंध जन्य सुख है। वो ब्रह्म संबंध के बाद की वो जो आत्मनिवेदन से जो उत्पन्न होने वाली भक्ति है ना, कि एवं धर्मैर मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदिनाम मयि संजायते भक्ति, वो आत्मनिवेदन जन्य भक्ति पहले गोपी जनों को प्राप्त हुई है। और गोपी जनों के दृष्टांत से बाद में अपने को श्री गोवर्धन धर ने श्रावण श्यामले पक्ष एकादश्याम महानिषि दी है। तो जैसे वो महानिषि में रासादि सुख आपने प्रदान किया, तदवत जो प्रभु ने आचार्य चरण को कृपा करके आज्ञा की है अपन लोगों पे कृपा करने के लिए, वो सब प्रकरण हम देख सकते हैं कि ये सेवा की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमारे को ये पंचधा दोषों से निवृत्ति पूर्वक हमको यदि उस स्वरूपानंद भजनानंद और ब्रह्मानंद का स्पर्श करना है, पहले तो देखो अभी तक हमारी जानकारी में क्या है, केवल विषयानंद। और आपको मालूम है आनंद जो है वो ब्रह्म का वाची है शास्त्र में। जब भी आनंद शब्द का प्रयोग होता है तो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन थी। जो ब्रह्म को जान जाता है उसको कभी किसी से भय नहीं लगता।
तो वो जो आनंद रूपी ब्रह्म है, आप देखो कैसा शास्त्रकारों ने शब्द बनाया, विषयानंद। विषयानंद कब बनता है मालूम है? जब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों को हम धर्मतः करें। तो धर्मतः करने पर चतुर्विध पुरुषार्थों को सिद्ध करने में जब एक एक विषयों का सेवन होता है, तो धर्मतः किए जाते विषय वासना के उपभोग से जो आनंद की उपलब्धि होती है, उसको विषयानंद कहा गया है। विषय वासना को नहीं कहा गया। वो विषयानंद है, वो विषय तृष्णा नहीं है, वो विषय वासना नहीं है, वो किसी जीव की दुर्वासना नहीं है, वो सद्वासना है कि हमको विषयानंद की इच्छा हो। तो विषयानंद क्या है? वो सेवा की वो प्री रिक्विजिट आवश्यकता है कि जिनका अनुभव होगा तो इच्छा होगी कि ये सब लाड़ तो प्रभु को लड़ाए जाए, ये सब चीजें प्रभु में समर्पी जाएं, ये सब चीजों में प्रभु को अपने साथ जोड़े। वो कनेक्टिविटी जो है वो विषयानंद। तो विषयानंद का सेकंड स्टेप जो है वो ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद के बाद भजनानंद है। भजनानंद के बाद सर्वोपरि जो है वो प्रभु जो कृपा करके अपने को दान करते हैं, वो स्वरूपानंद है। लेकिन इन सब चीजों के लिए आवश्यक है संसार दुख निवृत्ति और ब्रह्मबोध। और वो ब्रह्मबोध कब होगा? जब निश्चय रूप से हम जानेंगे कि पर ब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंद कम बृहत द्विरूपम तद्धि सर्वम स्याद एकम तस्माद् विलक्षणम। अब यहाँ पे दो वस्तु को महाप्रभु जी ने बता दी, जो चीज मैं समझा। और आप आश्चर्य देखोगे कि जब आप अक्षर ब्रह्म को समझाएंगे, जब आप अक्षर ब्रह्म के एकम तस्माद् विलक्षणम, उस विलक्षण स्वरूप की विलक्षणता को महाप्रभु जी प्रतिपादन कर रहे हैं, तो वहां उसको तीन कैटेगरीज दे रहे हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। अभी आपको एक सहज इस चीज पे प्लीज चिंतन करिएगा, और मैं शास्त्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इस चीज के ऊपर प्रकाश आगा के इन सत्रों में आप लोगों से करें ही वो। और वो क्या चीजें मैं आपको बताता हूँ। ये अभी बात चल रही है सेवा की, चित्त वृत्तियों की प्रभु में प्रवण करने की, तनुजा वित्तजा और मानसिक की। यहाँ अचानक से ये आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक ये क्यों आया है? हमको थोड़ा डिस्टर्बिंग लगता है। जैसे 7वें अध्याय और 9वें अध्याय में अच्छा भला ज्ञान विज्ञान योग चल रहा है गीता में, उसके बीच में अक्षर ब्रह्म योग आ गया है। अब अक्षर ब्रह्म योग में और इन दो योग में क्या कनेक्टिविटी है भाई? वहां पे भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, और यहाँ भी बता रहे हैं कि भाई मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बता रहा हूँ कि जिसको समझने से तूने ज्ञान विज्ञान को समझ दिया तो तुझे सब बात समझ में आएगी। तो एक ज्ञान विज्ञान योग है और राज विद्या राजगुह्य योग है। इन दो योगों के बीच में जैसे अक्षर ब्रह्म बैठा हुआ है ना, उसी प्रकार से ये पूरी सिद्धांत मुक्तावली के सेवा क्रम के बीच में, सेवा प्रकार, सेवा के ग्रंथ के बीच में ये कहीं ना कहीं आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक वस्तु में वैसे ही लटक रही हैं जैसे अक्षर ब्रह्म योग गीता जी में विराज रहा है 8वें अध्याय में। कैसे समझो? ये चीज को महाप्रभु जी क्यों लाए? उसको 3 लेवल पे समझाने के। क्या लेवल्स हैं? लेवल्स यहाँ 3 ही चीज के चलेंगे, मानसी, तनुजा और वित्तजा। आदि दैविक क्या चीज है? मानसी। आध्यात्मिक क्या चीज है? तनुजा सेवा। आदि भौतिक क्या चीज है? वित्तजा सेवा। तो इसको 3 लेवल्स दिए गए हैं। एक वस्तु है आपकी वित्तजा सेवा। आप उसको आदि भौतिक स्तर पर समझो कि आपकी वो जो सेवा है वो भौतिक पदार्थों का प्रभु में अभिनिवेश मात्र है, फर्स्ट। सेकंड, आपकी तनुजा सेवा वो थोड़ी सुपीरियर है। क्या सुपीरियरिटी उसमें? कि उसमें आप अपने अहंकार को प्रभु को समर्पित कर रहे हो और अहंकार से जुड़ी हुई सब चीजें आपकी अपने आप उसमें जा रही हैं। तो वो क्या आ रहा है? आपकी आत्मा को जो अहंकार का स्पंदन है ना, वो आत्मीय अहंकार के स्पंदन का प्रभु के वैराट्य के आगे जो अपने मतलब में कहते हैं ना कि अणोरणीयान महतो महियान, तो महतो महियान के आगे तुम अणोरणीयान हो, उसका जो स्वीकरण है वो तनुजा सेवा है। तो वो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में बताया गया है। और मानसी जो है वो पूरा आदिदैविक परिप्रेक्ष्य में। अब वहां क्या किया है? उस एक ही इस आइडियोलॉजी को महाप्रभु जी ने जल के दृष्टांत से, गंगा जी के दृष्टांत से और ठाकुर जी के दृष्टांत से समझाया गया है, क्योंकि सेवा भी तद्रूपा ही है। यदि अपनी भक्ति भगवद रूप है, तद्रूप है, तो सेवा भी तो तद्रूपा ही होनी चाहिए। तो सेवा को भी 3 लेवल्स श्री महाप्रभु जी प्रदान कर रहे हैं कि मानसी आदिदैवी की है, तनुजा सेवा आध्यात्मिक की है और वित्तजा सेवा आदि भौतिक की है। लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। ब्रह्मवाद की दृष्टि से भी करना पड़ेगा, कामाचार की दृष्टि से भी करना पड़ेगा, प्रतीति की दृष्टि से भी करना पड़ेगा,
प्राकाम्य की दृष्टि से भी करना पड़ेगा। तो उन लेवल्स को एकदम ऐसा धीरे 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 करके महाप्रभु जी डीप पेनिट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, अपने को वो मोती चुनने हैं ना, नीचे जाना है, नीचे जाना पड़ेगा, फ्रॉम द मैक्रोकॉस्म टू माइक्रोकॉस्म, कॉस्मिक लेवल पे आना पड़ेगा। तो मैक्रोकॉस्मोस में से माइक्रोकॉस्म्स में आओगे तो उस कॉस्मिक लेवल पे आने में अपने को समय लगेगा। और वो समय ये ग्रंथ इसके सिनॉप्सिस से अपन इसके सेलिएंट फीचर डिस्कस करने से केवल इस ग्रंथ में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। अपन एक दिन के शिविर में इस ग्रंथ को समझ नहीं सकते कायदे से। इस ग्रंथ की जो मेन स्ट्रीम लाइन है, जिस मुक्तावली में, जिस डोरे में ये सारे मोती पोए गए, वो तो यही है कि अनुग्रहो पुष्टि मार्ग नियामक इति स्थिति। लेकिन यहाँ पे उत्तमाधिकार, मध्यमाधिकार, अधमाधिकार भी आदिदैविक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे, आदि भौतिक स्तर पे, सेवा भी मानसी आदिदैविक स्तर पे, तनुजा सेवा आध्यात्मिक स्तर पे, वित्तजा सेवा आदि भौतिक स्तर पे। उत्तमाधिकारी जीव क्लिष्टोपि चेत भजेत कृष्णम लोको नश्यति सर्वथा, अपने आप उसका लोक नष्ट हो जाए। लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम, वापिस आदि भौतिक। लेकिन मैं वापिस कहना चाहूंगा कि यहाँ पे एक वस्तु को कंफर्म किया गया है कि यो यदंश सतम भजेत, जो वेद आज्ञा है उसको महाप्रभु जी एज इट इज स्वीकार है कि किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति भगवत सेवा का अनधिकारी तो है ही, अनधिकारी तो है ही नहीं। इसी कारण से आप देखोगे कि ग्रंथ में भी उपसंहार में, ग्रंथ के उपसंहार में श्रीमद आचार्य चरण बहुत स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं। एकदम से वो पंक्ति कहाँ चले, हाँ ये रहे। 15वें श्लोक में अपेक्षित जलादीनाम अभावत तत्र दुख बात तस्मात् श्री कृष्ण मार्गस्थो विमुक्तः सर्वलोकतः। ये एक पर्टिकुलर वाक्य में एक वस्तु सर्व सामान्य के लिए महाप्रभु जी ने कोई भी अधिकारी के जो डिफरेंसेस बताए बिना आप सुस्पष्टतया ये बात कही है, तस्मात् श्री कृष्ण मार्गस्थो। दूसरा एक गजब की बात ऊपर की कारिका में, तथा कृष्णम परम ब्रह्म सस्मिन ज्ञानी प्रपश्यति संसारी अस्तु भजते स दूरस्थो यथा तथा। संसारी व्यक्ति को भी भजनाधिकारी, लोकार्थी को भी भजनाधिकारी, हर व्यक्ति को सेवाधिकार देकर महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग के गौरव को और बढ़ाया है कि जो लोग भी पुष्टि मार्ग रूपी इस सेवा मार्ग में, कृपा मार्ग में, पोषणम तद अनुग्रह के मार्ग में आ गए हैं, ये लोगों को किसी भी स्थिति में आदि भौतिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे, आदिदैविक स्तर में भगवत विमुख हमको नहीं करना। तो ये जो भगवत सन्मुखता प्रदान करता जो एक ग्रंथ है, जो हमारी चित्तवृत्तियों को प्रभु में लाने और लगाने का ग्रंथ है, जो अपने को साधन दशा में तनुजा और वित्तजा रूपी दो विभाग देता है और अपने को फल दशा को मिलाकर दो प्रकार की प्रधान सेवा तनु वित्तजा और मानसी देता है। हमको इन सब चीजों से एक सार इस हमारे सत्र का भी अभी हम उपसंहार कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि पुष्टि मार्ग की अभी प्रवर्तमान परिस्थिति में संप्रदाय में हम जितना हो सके उतना डूज को ढूंढें तो अच्छा, और डोंट के ऊपर यदि हम बहुत चर्चा करेंगे, मतलब जिसको शास्त्रीय भाषा में कहें तो विधि और निषेध में हमको निषेध पे बहुत चर्चा नहीं करनी चाहिए। वो एक पीढ़ी, पूरी एक जनरेशन ने बहुत की अपने बच्चों के साथ। अब हमको बात करनी है विधि की। तुमसे कितना समय है, तुम कितना अपना समय दे सकते हो, उतने समय में तुमको भक्ति का क्या कल्प प्राप्त हो जिससे तुम्हारा भक्ति कल्प द्रुम विकास पाए और तुम्हारी भक्ति का वर्धन हो। केवल इस बात पर विचार करना ही पुष्टि मार्ग में आज आवश्यक है। आज अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद के इस महान पोर्टल से, मतलब इसके विश्वव्यापी इस पोर्टल से मैं संप्रदाय में यही संदेश या आशीर्वाद लोगों को देना चाहता हूं कि आप करने के मार्ग ढूंढिए, नहीं करने के मार्गों पे चिंतन बंद कर दीजिए। बहुत लोग संप्रदाय में लगे हुए हैं, आ नहीं कराए, तेम नहीं कराए, आ न करवू જોઈએ, તેમ ન કરવું જોઈએ, આ કરવાથી અપરાધ થાય, આ કરવાથી દેવલક થાય, આ કરવાથી देव द्रव्य આવી જાય, આમ છે તેમ છે। अरे यहाँ तक कि श्रीनाथ जी तक को अपन ने नहीं बख्शा है, अपन ने श्रीनाथ जी के महाप्रसाद तक को कह दिया है कि उसको लेने से भी पाप लगता है। ऐसी जहां पे विकटतम परिस्थिति खड़ी हो, वहां तो सांप्रत समय में एक ही वाक्य समझ में आता है कि सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च कल धर्मिणी में भक्ति मार्ग भी आ गया। आज कलौ भक्त्यादि मार्ग ही दुस्साध्य इति में मति, जो महाप्रभु जी ने कहा, वो आज अपने को चरितार्थ दिख रहा है कि लोग हर वस्तु में एक प्रकार का निषेध ढूंढ रहे हैं।
बंद करो, निषेध का चिंतन करना ही बंद करो और ये चीज पे चिंतन करो, हम क्या कर सकते हैं, हम कितना कर सकते हैं, हम पाठ कर सकते हैं कितना पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं कितना जप कर सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं क्या सेवा कर सकते हैं, हम कैसे हाथ पवित्र करें, जीवन को कृतार्थ कैसे करें, ब्रह्म संबंध को सार्थक कैसे करें, कि हम क्या करें जिससे हमको ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हो। आज माता पिता क्या चीजों से प्रसन्न होते हैं? दो वस्तु, एक उनकी बात मानी जाए, एक उनका सम्मान किया जाए। फिर आप कुछ कम पदार्थ भी उनकी सेवा में धरो तो माता पिता के आशीर्वाद ही निकलते हैं। बस ठाकुर जी सर्वोपरि अपने त्वमेव माता च पिता त्वमेव है ही ना। आज ठाकुर जी में भी अपने को बस ये विचारना है कि एक सर्वदा प्रभु का स्थान मतलब सर्वोपरि हो। न लौकिक प्रभुवत कृष्णो न दृष्टव्य कदाचन, न लौकिक प्रभुवत कृष्णो मनुते नैव लौकिकम। ये दोनों वाक्यों का चिंतन करके अपने को भगवान की अलौकिकता, भगवान की पारलौकिकता का चिंतन करना चाहिए कि भगवान तो ये स्वर्ग नरक आदि से भी खूब परे हैं। और प्रभु अपने को फलरूप कब हुए हैं कि भगवान एव ही फलम स यथावीर भवेद भुवि। अपने लिए प्रभु जो अपने घर पधार के अपने से सेवा ले रहे हैं, उनमें क्या तनुजा हम कर सकें, क्या वित्तजा हम कर सकें, क्या मानसी भी हम मानसिक रूप से कैसे और कितना प्रभु का चिंतन करके हम प्रभु में अपने मन का और चित्त वृत्तियों का अभिनिवेश कर सकें। ये न के न प्रकारेण मन कृष्णम निवेश चाहिए, मन का कृष्ण में अभिनिवेश हो, इसका जो पुनीत प्रयास है बस वो ही मतलब सवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहितु क्या अप्रतिहता, अप्रतिहत किसी के रोके रुके नहीं, और अहितु क्या कोई हेतु ना हो जिस भक्ति का, बस अहितु की अप्रतिहत भक्ति चलती रहे, उसी से यह आत्मा संप्रसिद्धति। अपने को कृपा प्रसाद प्रभु का तभी प्राप्त होगा कि जब हम अपनी तरफ से अपना 100% दें। मैं आज समग्र वैश्विक स्तर पे जुड़े हुए वैष्णवों को एक अपील करता हूं कि जॉन एफ कैनेडी की तरह कहता हूं, डोंट सी व्हाट द नेशन हैज डन फॉर यू, सी व्हाट यू आर डूइंग फॉर द नेशन। उसी प्रकार से डोंट सी व्हाट पुष्टि मार्ग हैज डन फॉर यू, सी व्हाट यू आर डूइंग फॉर पुष्टि मार्ग, व्हाट यू आर डूइंग फॉर संप्रदाय। क्योंकि संप्रदाय आपकी भी धरोहर है। जिस दिन से आपने कंठी ली, ब्रह्म संबंध लिया, आपने अपने आप को श्रीनाथ जी का माना, और श्रीनाथ जी ने जिस दिन से आपको अपना जाना, आप उस दिन की जानकारी के बाद से आप संप्रदाय के अविभाज्य अंग हो। और संप्रदाय की आपको रक्षा करना, विद्वत भी सर्वथा श्राव्यम ते ही सन्मार्ग रक्षकः। सन्मार्ग के रक्षण के लिए इन बातों को बार बार सुनना, पढ़ना, सोचना, विचारना। मतलब जैसे भागवत जी में आया है, तत्शृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नर, वो हमको भी ये स्वमार्गी ग्रंथों के साथ भी करना है। आत्मा रेवा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिधासितव्य। बस यही चीजों का वारंवार जो पुनरावर्तन है वो अलग अलग केस फाइल्स के रूप में बाल बोध से प्रारंभ कर सेवा फलियंत की है। इसमें एक महाप्रभु जी का भी तो केस है, अंतःकरण प्रबोध जो है वो श्री महाप्रभु जी का सेल्फ डिफेंस में केस है। महाप्रभु जी खुद को डिफेंड कर रहे हैं कि मैंने क्यों आज्ञा मानी, नहीं मानी, क्या मानी, कौन सी मानी। तो आचार्य चरण तो खुद को भी इति श्री कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितम वच चित्तम प्रति यदा करण्य भक्तो निश्चिंतता मृजे। बात मैं मेरे मन से कर रहा हूं, पर तुम इसको सुन के तुम निश्चिंत हो जाना मेरे भक्तों। आपने कभी ऐसा आचार्य देखा है कहीं और कि जो ऐसा विचार करता हो कि विचार तो मैं मेरे खुद के लिए कर रहा हूं, पर इन विचारों को सुन के तुम स्वस्थ हो जाना, तुम मस्त हो जाना। तो इस आचार्य की जो विश्वव्यापी जगत गुरु की वैश्विक सार्वजनिक दृष्टि है, उसको सर्वदेश दशा काले अव्याहत पराक्रम मानकर ही चलना चाहिए। हमको इसको सामाजिक नहीं कर देना चाहिए कि ये तो केवल पुष्टि मार्गियों के लिए, अन्यों के लिए नहीं है। ये पर पुष्टि मार्गियों के लिए, अन्यों के लिए नहीं है, पर पुष्टि मार्ग सबके लिए है, ये तो बोलो कम से कम सबको। बस मैं इसी के साथ यहाँ पे आज आज्ञा चाहूंगा शास्त्री जी से कि मैं जितना भी इस ग्रंथ का सेलिएंट फीचर्स के साथ सिनॉप्सिस प्रारंभ में रख सकता था, मैंने आज एक दिन में रखा है। और शास्त्री जी जानते हैं कि मेरी एक समस्या है, मेरे को काफी समय चाहिए। मेरे को कोई ग्रंथ को पढ़ाने के लिए या समझाने के लिए मैं 1-2 घंटे में तो खाली गर्म हो पाता हूँ। मेरी बुद्धि थोड़ा जागृत होके चलना शुरू 1 घंटे के बाद होती है, और तब तक अगर समापन की सीटी बज जाती है तो फिर मुझे बड़ा वो कहते हैं ना रसाभास हो जाता है। तो अब मैं अब आप लोगों से आज इजाजत चाहूंगा और आज्ञा लेना चाहूंगा। तो मैं शास्त्री से आग्रह करता हूं कि आप जिस प्रकार से भी सभा का नित्य समापन करते हो आश्रय के पद आदि द्वारा, या जो भी आपका क्रम हो आप उसको आगे बढ़ाएं। मैं श्रीमद आचार्य चरण के चरणारविंद में
और उपस्थित समस्त इन सभी सज्जन भगवदीय वैष्णवों को और विद्वान शास्त्री वर्ग को ये अपील करना चाहता हूँ, संप्रदाय को स्वास्थ्य लाभ हो, बस उन्हीं बातों को समाज के सामने रखें। बिकॉज अपना संप्रदाय कोई भवौषधि नहीं है, अपना संप्रदाय एक न्यूट्रिटिव डाइट है, एक पूरा खुराक है कि जिससे अपने को लोगों को पोषित करना है। और माल न्यूट्रिशन का जो शिकार हुए हैं संप्रदाय में, जो कुपोषित रह गए हैं संप्रदाय में, उनको स्वस्थ पोषण देके उनको भगवत वाणी और भगवत सेवा से मस्त करना है। मैं आप सभी के समक्ष बस इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की। ખૂબ ખૂબ ઉત્તમ આપશે આપણને માર્ગદર્શન આપ્યું, એક પોઝિટિવ અપ્રોચ આપ્યો આપણને. શાસ્ત્ર બે શબ્દ આપે છે, વિધિ અને નિષેધ. જીવનમાં દરેક જગ્યાએ આપણને બે ઓપ્શન મળે છે, આપણે કયો અપનાવો એ આપણને નક્કી કરવાનું. એક આપણને ષોડશકંતને વિચારવાને માટેનું પણ માર્ગદર્શન આપ્યું કે શ્રી આચાર્ય ચરણની પાસે અલગ અલગ કેસીસ આવ્યા અને એક કેસ એમાં પોતાનો પણ છે, આ પણ આપણને એક દ્રષ્ટિકોણ મળ્યો. સાથે સાથે કૃષ્ણ વાક્યાનુસારેણ શાસ્ત્રાર્થમ એ વદંતી એ ષોડશકંતની સાથે લઈ અને એનું અર્થઘટન પણ આપણને સમજાવ્યું. અને તનુ ઇત્તજા માનસીને માટે જે ત્રણ શબ્દ આપણે આગળ બે દિવસ વિચાર કર્યા, આદિદૈવિક, આધ્યાત્મિક અને આદિભૌતિક, એની પણ આપણને સમજણ આપી. અને સર્વપ્રથમ મંગલાચરણ, શ્રી યમુનાષ્ટકમ અને બાલવોદ, એમાં જે અંતિમ પુરુષાર્થથી આરંભ કર્યો, આવું ઘણું બધું સુંદર સંકલન આપશે આપણને ખૂબ જ અનુગ્રહપૂર્વક અસ્ખલિત વાણીમાં શ્રવણ કરાવ્યું. આપણું કર્તવ્ય એટલું જ છે, જો એકાદ વાક્ય પણ આપણે એક શબ્દ પણ ઉતારી લઈશું પોઝિટિવ અપ્રોચનો, વિધિ, તો પણ આજનું આ જે સત્ર છે આપણા દરેકના જીવનને એક નવી દિશા આપી શકે એમ છે. પૂજ્ય મહારાજશ્રીની સાથે જે વૈષ્ણવો આજના દિવસને માટે જોડાયેલા છે તે તો મહારાજશ્રીથી પરિચિત છે જ, પણ આપ શ્રીનાથજી બાવાની પ્રાકટ્ય વાર્તા પર પણ વચનામૃત ચાલુ છે. ફેસબુકની સાથે જેઓ જોડાયેલા હોય, સર્ચ કરશો તો એની માહિતી આપ લોકોને મળી જશે, આનંદ આવશે. શાસ્ત્રીય વક્તવ્ય, એનો રસાસ્વાદ આપ લોકોને ત્યાંથી મળશે. તો પુનઃ એક વખત પરિષદની અને અમારી વિનંતી ને આપ શ્રીએ સ્વીકારી અને આપ શ્રી સમય કાઢીને અહીંયા આગળ પધાર્યા અને અમને સર્વને લાભાન્વિત કર્યા, એ માટે ખૂબ ખૂબ આપ શ્રીનો અનુગ્રહ. અને શ્રી ચરણોમાં, આપ શ્રીના શ્રી ચરણોમાં, સેવ્ય શ્રી ઠાકોરજીના શ્રી ચરણોમાં અને પૂજ્ય મહારાજ શ્રી સરકારશ્રીના શ્રી ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ કરી અને અહીંયા આગળ વિરમીએ છીએ. પુનઃ સોમવારે આપણે આગળનો જે ક્રમ છે પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદ, એનો આરંભ કરીશું. ત્યાં સુધી જે વિદ્વજ્જનો શ્રવણ કરતા હોય એમને દંડવત પ્રણામ અને બાકીના સર્વ વૈષ્ણવોને ભગવત સ્મરણ કરી અને આગળ વિનવું છું. અસ્તુ. शास्त्री जी, जी, मैं एक शब्द आपसे कहूं कुछ? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने परिषद को मेरा नाम सजेस्ट किया और मुझे पहली बार आज अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद से संवाद करने का मौका मिला। मेरा जितना भी अभी तक आचार्य चरण के इस मार्ग की सेवा करते जीवन व्यतीत हुआ है, इसके मैंने कभी परिषद के साथ गेट अलोंग होके कोई कार्य में मैं हाथ अभी तक नहीं बटा पाया था। तो आज जैसे इंग्लिश में जिसको कहते हैं कि फेदर इन अ कैप, फेदर इन अ हैट, आज आपने मेरे को एक वो चीज और प्रदान की है। तो मैं आप दोनों पिता पुत्र, मतलब आप श्री कृष्णदत्त जी शास्त्री जी और चिरंजीव हमारे प्रिय ऐसे मेरे बंधु आदित्य शास्त्री जी, दोनों को मैं खूब खूब धन्यवाद देना चाहूंगा। परिषद के भी 3 महानुभावों के नाम जो मैंने प्रारंभ में भी लिए, मैं उन सभी को भी इन हमारे शास्त्री जी का ये आग्रह आपने स्वीकारा और मुझे परिषद में बोलने दिया। मुझे बहुत, आज मुझे आपको मैं बताऊं, मैंने परिषद के बारे में बहुत पढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद में जिस ढंग से परिषद के गठन और परिषद को अखिल भारतीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में जो ढंग का प्रयास नित्य लीलास्त गोस्वामी 1008 श्री रणछोड़ राय जी महाराज श्री प्रथमेश जी ने जो ढंग से किया, उसके बारे में मैं बचपन से पढ़ के बड़ा हुआ। मैं जब तक थोड़ा समझने लायक हुआ तब तक आप भूतल पे नहीं विराज रहे थे, पर मैंने कुछ 5-7 साल मेरे जीवन के ऐसे जिए हैं
कि मैंने उन रणछोड़ लाल जी, महाराज श्री प्रथमेश जी के कार्यकाल में 5 साल जीवन के, 5 या 6 साल मैंने जीवन के जिए होंगे। तो मुझे बहुत ऐसा था कि इतनी महान संस्था और जिनके इतने महान संस्थापक रहे हैं, ऐसे जो ये चीजें हैं, इनमें कभी मैं भी अपने वाणी को पवित्र करूं या इस सेवाओं से जुड़ के हाथ पवित्र करूं, तो शास्त्री जी परिषद का तो मैं अभिनंदन और अभिवादन करता ही हूं, लेकिन विशेष करके आप दोनों ने मुझे ये एक मौका दिया कि यहाँ से मैं सिद्धांत मुक्तावली की कुछ बातें रख सकूं समाज के आगे। इसके लिए मैं आपका पुनश्च एक बार बहुत बहुत आभारी हूँ। खूब खूब धन्यवाद। और आचार्यों की वाणी, आप स्वयं शास्त्री हो और शास्त्री वर्ग आचार्यों के वाणी की आज भी इतनी महत्ता समझता है और उसको समाज में लाने के लिए प्रयत्नशील है, इसके लिए मैं आपकी इस उदार भावना को खूब सराहता हूँ। आपकी भूरिशा प्रशंसा के साथ आपको साधुवाद मैं प्रदान करता हूँ। खूब खूब नमस्कार शास्त्री जी, आज्ञा लो। પ્રભુ, અમે તો જીવ છીએ, અમે આપશીને શું આપી શકીએ? नहीं, આ તો આપશીનો ઔદાર્ય છે કે આપશી પધાર્યા અને નિત્યલીલાસ્ત પૂજ્યપાદ શ્રી પ્રથમેશજી મહારાજ શ્રી તો મારા દીક્ષા ગુરુ છે અને આ 4 પેઢી થઈ ગઈ પરિષદની સાથે. આ ચિરાયુષ્માન આદિત્ય પણ જોડાઈ ગયો, પણ કઈ ઠાકોરજીની જ કૃપા હશે. बराबर बराबर, આ બધું પ્રભુની કૃપા અને આપશીના આશીર્વાદ. खूब आनंद से हृदय में आपसे पधार्या। नहीं, कभी कुछ और भी कार्य हो तो परिषद के साथ में सर्वदा हूँ। मेरे लिए भी आदर्श आचार्यों में से एक श्री प्रथमेश जी रहे हैं। आपके अलग अलग प्रकार से सोम यज्ञों को करना, कुंभ पर्वों का आयोजन करना और सनातन धर्म में वापिस जगत गुरु के स्थान पे श्रीमद आचार्य चरण को लाना, ये जो आपका एक प्रयास रहा अपने जीवन में, ये सर्वदा स्तुत्य और सर्वदा अनुसरणीय है कि हमको हमेशा विश्वव्यापी स्तर पे जब बात करनी हो तो पुष्टि मार्ग की कनेक्टिविटी सनातन धर्म से हटानी नहीं चाहिए। हम सनातन धर्म के एक अंग रूप हैं, ये तो हमको हमेशा मान के चलना ही चाहिए। बस ये जो आप लोग मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत वास्तव में बहुत स्तुत्य है। और मैं सर्वदा जब भी आप लोगों से बात करता हूँ तो आप दोनों जन पिता पुत्र कोई न कोई प्रकार से सत्संग सत्रों में ही वैष्णवों के साथ रहते हो, ये जान के तो बहुत खुशी होती है कि आज कथा पक्ष को इतना सुदृढ़ ढंग से आप लोगों ने संभाल रखा है। तो जैसे आचार्य बालक सेवा पक्ष को संभालते हैं, वैसे अपने यहाँ के शास्त्री वर्ग कथा पक्ष को भी उतने ही आग्रह और आदर के साथ संभाल रहे हैं। ये एक तो बहुत बहुत मन को संतोष देने वाली बात है। बाकी आज तो मैं पुनश्च चाहूंगा कि गोस्वामी समस्त आचार्य महानुभाव भी व्यासासन से उठ के वापिस आचार्य आसन पे प्रतिष्ठित हों और अपनी गरिमा से समाज में शोभायमान हो, क्योंकि जो स्थान आप लोगों को परंपरा से प्राप्त हुआ है उसका हस्तांतरण कर लेना भी एक प्रकार से स्वरूपच्युति ही है। तो शास्त्री वर्ग को शास्त्री वर्ग का एक ऐसा मान मिलना चाहिए कि हम भी बोलने में ये गर्व महसूस करें कि हम उन शास्त्री जी के पास पढ़े हैं, हम उन शास्त्री जी के पास पढ़े हैं। आज जैसे शांकर, रामानुज, मध्व संप्रदाय के समस्त आचार्य जो विरक्त आचार्य होते हैं, वो भी अपने यहाँ के महामहोपाध्यायों को और शास्त्री वर्ग को सराहते हैं कि हमने उनके पास शास्त्र अध्ययन किया, व्याकरण अध्ययन किया, वेदांत पढ़ा, न्याय हमने उनसे पढ़ा। वैसा आज हमारे यहाँ तो बोलने को रह ही नहीं गया है कि मेरे को वो शास्त्री जी पढ़ाते थे, मुझे वो शास्त्री जी पढ़ाते थे। जैसा मैं बचपन में सुनता था कि जब हमारे यहाँ मध्वाचार्य जी बालकृष्ण के दर्शन करने पधारे बड़े मंदिर, तो दादाजी श्री दीक्षित जी महाराज ने विद्वान 33 विद्वान शास्त्रियों के साथ मध्वाचार्य जी का स्वागत किया था। तो आप सब तो हमारे संप्रदाय का गौरव भी हो और हमारी शोभा भी हो। आज आप लोगों को जो यथोचित मान समाज में मिलना चाहिए वो हमको भी आपको प्रदान करना चाहिए। और ये तो अरसपरस बात है। आज तो क्या हो गया है, ये ब्राह्मणम दृष्ट्वा श्वानवत घुरघुरायते, कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई है कि ना आचार्यों का आना शास्त्रियों को पसंद आता है, न शास्त्रियों का आना आचार्यों को पसंद आता है। इसके कारण ही संप्रदाय आज ये दुर्दशा को पहुंच गया है कि कोई ना कुछ पढ़ रहा है, ना कोई कुछ पढ़ा रहा है। तो जो परिस्थिति डेवलप हुई है मतलब संप्रदाय में, कि जो महाप्रभु जी के वचन है कि आगे काल महाकठिन आवेगो, न कोई कछु पूछेगो, न कोई कछु बतावेगो, वो आज अपने को दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो एक संधि थी आचार्यों की और शास्त्री वर्ग की, ये संधि कहीं ना कहीं छूटी है और उसके कारण ही वैष्णव बाल बोध भी नहीं, अबोध दशा को आ चुका है एकदम। तो मैं वापिस इस चीज को लाना चाहता हूं कि आप लोगों की कथाएं हमारी अध्यक्षता में हों और हमारी अध्यक्षताओं में आप लोग कथा करें और आप व्यासासन पे बैठे और जो व्यासोक्ति आप बोले उस पे आचार्य वचन हम प्रकाश करें। तो ये सब चीजों का एक पुनश्च सामंजस्य जब बैठेगा तब जाके समाज में
स्वस्थ, सभ्य, शालीन, सुसंस्कृत और सुज्ञ संस्कृति का और संस्कारों का निर्माण होगा, ऐसी मेरी शुभ कामना है। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपसे ने जो आज्ञा की वही क्रम यहाँ पर सोचा कि 2 दिन के लिए या तो 3 दिन के लिए ग्रंथ पर वक्तव्य हो और कुछ विशेष सभी वैष्णव लाभान्वित हो वही ग्रंथ से, तो एक विशेष विचारधारा भी पता चले कि किस तरह से इसे सोचना चाहिए। और 16 ग्रंथ के लिए 16 बालक को विनती की है और साथ ही साथ आशीर्वाद प्रदान करने के लिए विशेष रूप से कोई पधार सके तो संप्रदाय के सभी वर्ग, आचार्य वर्ग, विद्वत वर्ग, वैष्णव वर्ग, सभी एक साथ मिलजुल के चले आप श्री की अध्यक्षता में। वही एक मन का संकल्प है जो परिषद के माध्यम द्वारा श्री ठाकुर जी परिपूर्ण करवा रहे हैं। बस यही विनती है। संगच्छध्वं संवदध्वं संयो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। ओम शांति शांति शांति।